السلام علیکم جی، باخبر سویرا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دن ہے جمعے کا اور میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق صدیقی اور میں ہوں آمنہ کھٹانہ۔ امید کرتے ہیں آپ خوشحال ہوں گے اور خوش ہوں گے، اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے بہت اچھے سے۔ لیکن جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لمپی ڈیزیز جو آئی اس کے بعد جو امپیکٹ پڑا قیمتوں پر، چکن کی اور مٹن کی قیمتوں پر، وہ دن بہ دن آگے چلا جا رہا ہے یہ معاملہ۔ اس کو روکنے کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے کمشنر کراچی نے جناب ایک میٹنگ کی اور انہوں نے کہا کہ آج کے دن یعنی آج فرائیڈے کو وہ میٹنگ جو رہی وہ انکنکلوسیو رہی کیونکہ اس میں کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آج یعنی فرائیڈے کے دن کوئی کنکلوژن تک پہنچا جائے، کوئی نتیجہ نکالا جائے کہ کہاں پر جا کے اس قیمت کو سٹاپ کر رہے ہیں کیونکہ قیمتیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں۔ گفتن برخاستن نتیجہ صفر۔ ایسے ہم نے دودھ کی قیمتوں کے ساتھ دیکھا، ایسے ہم نے وہ قیمتیں دیکھی جو کہ ویب سائٹ پہ لگتی تھی پہلے، اب ٹویٹر پہ پوسٹ کی جاتی ہیں، ریٹ کچھ اور ہوتا ہے، بتایا کچھ اور جاتا ہے، چلتا کچھ اور ہے، پرائس لسٹ آتی نہیں ہے۔ اب اس کا بھی جو نتیجہ نکلے گا یعنی کہ 530 540 570 تک کا چکن کا نرخ ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وجہ کیونکہ بیف کوئی کھانے کو تیار نہیں ہے، دودھ کوئی پینے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ مسئلے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں، یعنی جس کو جہاں موقع ملتا ہے نا وہ وہاں پر چوکا مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جتنا ہتھیار ہے ہتھیار لو ان سے، اب نکالو ان سے، ان کا خون چوس لو۔ ایک مثال موجود ہے کہ ایزی کمز ایزی گوز، تو وہ جیسے آسانی سے آتا ہے ویسے آسانی سے نکل بھی جاتا ہے۔ لوگوں کو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ دیر از نو شارٹ کٹ کسی بھی حوالے سے۔ زندگی میں ترقی کے لیے بھی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، آگے بڑھنے کے لیے جلدی پیسہ کمانے کی جو لگن میں ناجائز منافع خوری کر رہے ہیں، اور خاص طور پر ماہ رمضان کی اب آمد ہے، تقریباً 15-16 دن 3 یا 4 تاریخ کو پہلا روزہ ہوگا پروبیبلی، تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ تھوڑا سا احساس کر لیں، ایمپتھی ہونا بہت ضروری ہے۔ ویسے ایک بات یہ ہے کہ جہاں پر اولاد کو ماں باپ کا احساس نہیں رہا تو وہاں پر دوسروں کا احساس کوئی کیسے کرے گا۔ بات کریں گے پہلی ٹاپ سٹوریز۔ سندھ ہاؤس اسلام آباد میں موجود پی ٹی آئی اراکین سامنے آ گئے، ضمیر کا سہارا لے کر پی ٹی آئی سے کنارہ کر لیا۔ موجودہ حالات میں بھی وزیر اعظم عمران خان پر اطمینان۔ سندھ میں گورنر راج لگا دیا جائے، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا وزیر اعظم کو مشورہ۔ سعید غنی کہتے ہیں کہ فیصلہ پاگل پن ہوگا۔ والدین کو بے گھر اور نظر انداز کرنے والے بچے ماں کی نظر میں برے نہیں۔ عدالت میں سماعت کے موقع پر بوڑھی ماں کی آنکھوں سے آنسو اور زبان سے نافرمانوں کے لیے دعائیں نکلی۔ چھوٹی عمر میں بڑے کارنامے، چنیوٹ کی 10 سالہ گرافک ڈیزائنر فقیہہ شاہد کے فن پارے اپنی مثال آپ ہیں۔ اوکے جی، تو ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ اس پر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم علیہ صبح کے ڈسکشن نہ کریں۔ جب گلی محلے چوباروں چوک میں جب یہ ڈسکشنز چل رہی ہیں تو ہم ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے مبرہ رہیں۔ تو بھائی ہو یہ رہا ہے کہ کل بڑی ایسی سٹوریز تھیں کہ جیسے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ریسکیو آپریشن کیا جائے گا، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ جو ان کے کارکن ہیں ان کو شاید زبردستی رکھا گیا ہے تو اس کی بازیابی کے لیے ممکنہ طور پر اہلکاروں کو بھیجا جائے۔ اب چکر یہ ہوا کہ اس کے بعد جو وہاں پر جو ارکان تھے وہ پھر سامنے آ گئے، ظاہر ہے انہوں نے مشاورت وغیرہ کی ہوگی۔ تو سندھ ہاؤس سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا تھا اور وہاں پر جناب پی ٹی آئی کے ارکان بھی موجود تھے، راجہ ریاض، رمیش کمار، نواب شیر وسیر، نور عالم خان۔ اچھا، نور عالم خان صاحب کا تو پہلے سے پتا تھا کہ یہ کریں گے ایسا، کیونکہ جب بلدیاتی الیکشنز ہوئے تھے جو ان کے اختلافات تھے کھل کر سامنے آ رہے تھے، وفاقی وزراء کے خلاف بیانات داغے جا رہے تھے، تو تب سے یہ سچویشن واضح ہو رہی تھی کہ جناب یہ منحرف اراکین میں سے ایک رکن ہوں گے۔ اب جو اراکین سامنے آئے ہیں وہ ان کی تعداد 12 بتائی جا رہی ہے، لیکن جس طرح سے راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ 24 اراکین ہیں ٹوٹل۔ انہوں نے کل انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ 24 اراکین ہیں، لیکن 12 اراکین جن کی ویڈیوز بھی سامنے آ گئی ہے، اس میں 3 خواتین اراکین بھی شامل ہیں۔ کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں۔ تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ فیصلہ آباد سے الیکشن لڑے تھے راج صاحب، آپ لوگوں کو یہاں دیکھ کے سندھ ہاؤس میں کچھ ہنگم مانگا، کچھ سوات کی یاد نہیں آ رہی آپ کو؟ لاجز میں پچھلے دنوں پولیس نے ریڈ کیا، اپوزیشن کے ایم این ایز کو تشدد بھی کیا اور اٹھا کے تھانے بھی لے گئے۔ یہاں پر اگر آپ بیٹھ کر سودے کریں گے
ऑपोजिशन के साथ सीटें बिकेंगी, क्या पैगाम भेज रहे हैं? ये वोट पैसे दे रहे हैं? नहीं तो आप चाहते हैं कि मुल्क को तबाह कर दें? आप तहरीक इंसाफ के टिकट से इस्तीफा इंशाल्लाह दूंगा। जिस टिकट से जीत के आए हैं उसके खिलाफ जा रहे हैं, पहले इस्तीफा दें, दोबारा इलेक्शन लड़े, फिर जिसको मर्जी वोट डाल दें। इस्तीफा भी देंगे, इस वक्त वोट की जरूरत है, जिसको ज़मीर ने इजाजत दी वोट देंगे और जो मुल्क की बेहतरी के लिए होगा। इमरान खान साहब ने सारा इलेक्शन इन दोनों पार्टियों की करप्शन के खिलाफ लड़ा, उस पर ताबी नारे मारे थे कि करप्ट है। लेकिन अब हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा करप्शन है। अब आप ये फैसला कर रहे हैं कि कौन बड़ा चोर है कौन छोटा चोर है। सबसे ज्यादा करप्शन इस वक्त पीटीआई में है। नदीम बाबर ने क्या किया है, कितने अरब की करप्शन की, कई नाम ले सकता हूँ जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की है और अब वो नजर ही नहीं आ रहे भाग। हाँ जी, तो ये गुफ्तगू थी राजा रियाज साहब की। अच्छा, इसके साथ साथ ज़ाहिर है राजा रियाज साहब पहले भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं और अब मुमकिन तौर पर उनसे दोबारा राब्ते किए गए हों कि भाई आगे टिकट की भी बात की गई हो। सियासतदानों के लिए इलेक्शन से पहले ये चीज़ बड़ी अहमियत रखती है। अच्छा, दूसरी जानिब वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मैच फिक्सिंग के ख़िलाफ़ जंग कर रहा हूँ, मेरे खिलाड़ियों को लालच देने के लिए दौलत लुटाई जा रही है, इत्तेहादी हमारे साथ हैं, मुनहरिफ अरकान को भी राज़ी कर लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ज़मीर फरोश हैं ये और अब ये बेनकाब हो गए हैं। अपोजिशन की इस चाल के बावजूद तहरीक अदम एतमाद हम जीत रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अभी भी काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, हालांकि अब तो इत्तेहादियों की भी काफ़ी हद तक सिचुएशन जो है वो सामने आ गई है कि वो कहाँ पे जा रहे हैं, कौन सी साइड चूज़ करने वाले हैं। और इसके अलावा मुनहरिफ अराकीन भी सामने आ रहे हैं और अपोजिशन जिस तरह से कह रही है कि हमारे पास जो नंबर है वो 190 भी क्रॉस कर रहा है, तो ये एक अजीब सी सिचुएशन सामने आ रही है। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला ने इस सूरत हाल को देखते हुए तजवीज़ दी है कि सिंध में गवर्नर राज लगा दिया जाए, जिस पर सईद गनी ने कहा कि गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ को हम पागलपन करार देते हैं, और जबकि वफाकी वज़रा ये कह रहे हैं कि नहीं, गवर्नर राज नहीं लगाना चाहिए। जिस तरह से कल फवाद चौधरी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब थे, उन्होंने कहा कि फिर हम में और नवाज शरीफ में क्या फ़र्क रह जाएगा। था कि एक्शन लेंगे तो वो लोटे सारे खुद ही बाहर आ गए। आज बिजनेस मॉडल है जरदारी का और नवाज शरीफ का। इन लोगों के हलकों से फोन आ रहे हैं, हमारे कारकुनान मुश्तइल हैं, कानून को हाथ में ना लें, एहतजाज करना आपका हक है। वो बंदा ये कहता है कि मैं जमीर की आवाज पे वोट दे रहा हूं, उस बेशरम को मैं ये कहना चाहता हूं, तुम्हारे बाप का वोट है ये। पैसे लगाओ, हुकूमत में आओ और पैसे कमाओ। एक खातून एमएनए को 7 करोड़ रुपए दिए गए। नो कॉन्फिडेंस, अवाम की ताकत से नाकाम बनाएंगे। इमरान खान से ये कहा है, सिंध ने जो खरीदो फरोख्त की है, हमें सिंध में गवर्नर राज नाफद कर देना चाहिए। ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। बहुत अच्छा हो गया, सिंध हाउस एक्सपोज हो गया। सिंध के लोगों के पैसों को 20-20 करोड़ रुपए को खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त कोई सबब तो नहीं है सिंध में गवर्नर रूल लगाने का। किसी हुकूमत की खराब कारकर्दगी की बुनियाद ही गवर्नर रूल लगाना चाहिए, तो फिर मैं समझता हूँ कि पंजाब में लगाना चाहिए, केपी में लगाना चाहिए और वफाकी हुकूमत को फारिग करना चाहिए। सिंध हुकूमत इन तमाम हुकूमतों से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। अपने खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर परेशान होकर, घबरा कर, सटपटा कर, पागलपन में ये करना चाहते हैं, तो इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जाहिर है उनकी अगर ख्वाहिश है तो लगा के देख लें, लेकिन हम उन्हें बता देंगे ये काम इतना आसान नहीं है। अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं और ये जो बयान है, ये जो आवाज़ है, ये जो फरमाइश है, ये जो ख्वाहिश है, ये शिकस्त खुदा शख्स की हो सकती है। अच्छा जी, ओवरऑल जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर बात ज़रा कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद साबिर शाकिर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पॉलिटिकल अपडेट्स के हवाले से उनसे बात करेंगे और क़ानून क्या कहता है इस सारी सिचुएशन में। अजहर सिद्दीक साहब माहिर है कानून है, उनसे भी हम बात करेंगे। तो साबिर शाकिर साहब, सर ज़रा दसो की मसला है, ये हो की रहा है, अगे गल वध गई है? बात तो काफ़ी बड़ी हुई है बहुत अरसे से, और हुन ते गल वदन तो भी अगे चली गई है। सूरत हाल वही है कि तहरीक अदम एतमाद का सामना है और वज़ीर आज़म इमरान खान एक तरफ हैं और दूसरी तरफ अपोजिशन है, और बाकी रही सही कसर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो बगावत हुई है उसने पूरी कर दी है। अब सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं कम व बेश, और अब सिर्फ इत्तेहादियों का फ़ैसला बाकी है। और वो जो नंबर्स 190 प्लस बोले जा रहे हैं, अगर वो कैलकुलेट करें तो वो नंबर बिल्कुल यही हैं, और एक्चुअल अपोजिशन जो है उसका क्लेम वो अब तक दुरुस्त नज़र आता है, क्योंकि 163 अरकान है उसके, और 12 अरकान ये सामने आ चुके हैं जो कि सिंध हाउस में पाए जाते हैं, और 163 में 12 जमा करे 175 बन जाता है, और उसमें अगर 17 नंबर 3 जमातों का जो इत्तेहाद, यानी कि इत्तेहादी जमातों का इत्तेहाद जो है वो जमा कर लें तो वो 192, 193, 194 तक चला जाएगा। ये कैलकुलेशन की हुई है। अभी तक जो सूरत हाल है,
अब देखना है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी टीम जो है इसको कैसे निकालती है इस मसले से अपने आप को। लेकिन अभी भी ये जो पॉलिटिकल एटीट्यूड के साथ, पॉलिटिकल बिहेवियर के साथ ये सेटलमेंट नहीं की जा रही, पॉलिटिकल मैनेजमेंट अभी तक उनकी टीम नहीं कर पाई, अभी भी धमकियाँ शमकियाँ और मसल शो, हम गवर्नर राज लगा देंगे, हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे, हम वोट नहीं डालने देंगे, ये सारा जो भी इनके एडवाइज़र हैं आई थिंक वो कोई अच्छे मशवरे नहीं दे रहे। ऐसे मौके पे तो बड़ा हम्बल वे में चलना चाहिए और किसी भी तरीके से अपने वोट पूरे करने चाहिए, अपनी पार्टी को यूनाइट करना चाहिए। वो नहीं हो रहा, बल्कि खच्चर गधे फास्ट ट्रेडिंग ये वो सारी बातें करके वही अब सारी बातें कल जो बागी कान हैं उन्होंने वो सारी बातें वापस दोहरा दी कि जनाब हमें खच्चर भी कहा जाता है, गधे भी कहा जाता है, हॉर्स ट्रेडर भी कहा जाता है, तो फिर हमें किस अच्छे की तवक्को की जा रही है। आई थिंक अभी मैच चलेगा और आज देखते हैं वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब जो गवर्नर राज की समरी है वो वज़ीर आज़म को अरसाल करते हैं या नहीं। ठीक है साबिर, आप साथ रहिएगा, आपसे मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं। अभी अज़हर सदीक साहब का रुख करते हैं। अज़हर सदीक साहब, ये कहिएगा, अभी जो मुनहरिफ अराकीन सामने आए हैं इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन क्या एक्शन ले सकता है? दूसरा ये कि पार्टी के अगेंस्ट जाने पर इनको डी नोटिफाई किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया। आर्टिकल 63 इज वेरी क्लियर ऑन दिस सब्जेक्ट, डिफेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में है और डिफेक्शन का कानून का इतलाक वो होना है जब आप फ्लोर क्रॉस कर लेंगे। अभी तक तो मुझसे अगर पूछते हैं तो लॉ की पोजीशन यही है, लेकिन एक लैकूना है। अब जरा हिस्ट्री में अगर जाएं आप, झांगा मांगा की जब सियासत हुई थी तो उस वक्त बैठकर दो चीजें कही गई थी। एक तो आर्टिकल 63A के अंदर डिफेक्शन डाली गई थी कि डिफेक्शन ना हो, अगर कोई करेगा तो फिर डिस्क्वालीफाई होगा, लेकिन साथ साथ 58(2)B भी डाइल्यूट किया गया था कि असेंबली वक्त से पहले डिसॉल्व ना हो सके। तो दो एलिमेंट थे, एक तो 5 साल पूरे करने के वाले से। यहाँ अब क्या हुआ कि हमने रूल्स नहीं बनाए, नेशनल असेंबली के रूल्स 2007 जिसमें मोड एंड मैनर एंड प्रोसीजर फराहम करना है, तो वो आज भी बन सकते हैं उस रूल्स के अंदर। उसमें बाकायदा जो पार्टी लीडर है, जो पार्लियामानी लीडर है आपका, आर्टिकल 63A के तहत उसको इख्तियारात दिए जा सकते हैं और वही आले नाल होगा कि वो बाकायदा इनको शोकास कर सकता है या वक्त से पहले जो अगर कोई सस्पिशियस सरगर्मी है, अगर कोई वोट डालने के हवाले से बात हो सकती है तो वहां ऐसी प्रोविजन डाली जा सकती है कि ऐसे हालात और वाकयात हो तो उनकी नेशनल मेंबरशिप जो है ना फॉर द टाइमिंग सस्पेंड की जा सकती है। और वो लेकिन वही बात है कि इम्कानात के ऊपर कभी भी कार्रवाई नहीं होती। ये तो है ना कि अभी लग रहा है क्योंकि आगे वो भी कह रहे हैं कि हम जमीर के मुताबिक देंगे, लेकिन ये नहीं कहा कि किसको देंगे, मतलब क्लैरिटी नहीं है। और दूसरा जब दे देंगे फिर ही होगा, वरना फिर एक ऑप्शन, फिर फिर वही रह जाता है ना कि वो आपको याद है ना कि आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि वो एमपीओ के तहत वो 16 एमपीओ या कौन सी शिक है उसके तहत वो कर देते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं कि जी खदशा है कि ये नक्शे अमन कर सकते हैं। आपको याद है ना कि हम महीनों से पहले ऐसा होता है टाइम्स, वैसे ही कोई कानून बना लेते। अच्छा देखिए, ये सारी बातें जो है ना रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत अगर ये आज भी कहा जाए तो ये पॉसिबिलिटीज आर देयर। मकसद ये है कि डिफेक्शन रोकनी है, लेकिन यहाँ ये आज इनके केसेस के बारे में पोजीशन जरा बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है। एक तो सिंध हाउस में बैठे हैं, जमीन इनके जिंदा है ना, तो ये घरों में बैठते ये सिंध, और खासतौर पर सईद गनी आकर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, मरियम औरंगजेब वहां कर रही है, ताउला ताड़र, तो अब तो सब कुछ नजर आ गया है चेस बोर्ड के ऊपर कि वो डिफेक्शन करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, अगर डिफेक्शन ना करने जा रहे होते तो उन्हें सिंध हाउस में छुपने की क्या जरूरत थी? वहां सिंध हाउस के हवाले से ये स्टेट विद इन स्टेट कायम करने की क्या जरूरत थी? यहाँ तो बड़ा मुश्किल, बहुत आसान काम है। इनका 1 महीने का डाटा सीडीआर सामने निकाल के देख रहे हैं। इनके अगेंस्ट जो पैसों के हवाले से बात आ रही है, इनके अगेंस्ट बाकायदा मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो सकती है और उसके अंदर एविडेंस आपके पास बहुत बड़ी वाज़ेह तौर पर है। यानी ये अभी एप्रीहेंशन से बात आगे निकल चुकी है मेरी जाती राय के मुताबिक। मुमकिन एक्शन ये भी कहा जा रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कि पहले ही डी सीट कर दिया जाए, क्या ये मुमकिन है? अच्छा देखिए, अगर डी सीट अगर पहले तो कर नहीं सकते ना, यानी पार्टी लीडर के तौर पर अगर देखा जाए, अगर पार्टी, यानी दो बातें हैं, एक तो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है और मैं समझता हूं कि जब आप टिकट लेकर वो आप आते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे है कि आर्टिकल 63A में है कि आप पार्टी लीडर के कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस ये है कि वो तो हम मॉरल एथिक्स की बात कर रहे हैं। अगर सब कुछ सही चल रहा होता है इस मुल्क में तो आज हम छांगा मांगा की सियासत या उससे पहले भी या उसके बाद भी चमक की बात क्यों करते? अच्छा जी, एक और अब जरा साबिर शाकिर साहब, सर जी सर आप कुछ फरमा रहे हैं? मैंने कहा अगर ये
अगर इलेक्शन से पहले ही डी सीट कर दिया जाए तो फिर तो मेजॉरिटी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा सर, एक और चीज़ है साबिर भाई, ये अब ये जो गवर्नर राज का मामला है सर, मुझे ज़रा समझाइएगा कि आर्टिकल 232, 33, 34 में पढ़ता रहा, लेकिन उसके अंदर ज़ाहिर है कि असम्बली की भी उसके अंदर रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है, जो सूबाई असम्बली है। शेख साहब जो मशवरे दे रहे हैं, इनके पीछे कोई ठोस ग्राउंड मौजूद है आपकी नज़र में? नहीं, ठोस ग्राउंड नहीं है, ये बिल्कुल वही है कि ताकत का इस्तेमाल किया जाए और पीपल्स पार्टी को डराया धमकाया जाए, और पीपल्स पार्टी को डरा धमका के ये जो सिंध हाउस में बंदे बैठे हैं उनको ज़रा बाहर निकाला जाए, और उसके बाद फिर अज़हर सदीक़ साहब जो मशवरे दे रहे हैं गवर्नमेंट को, फिर उन पे अमल दरामद किया जाए और उससे कोई शायद बेहतरी की उम्मीद पैदा हो। लेकिन अभी तक सॉलिड ग्राउंड्स अभी नहीं है सिंध हाउस में, सिंध में गवर्नर राज लगाने के लिए। कल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि जब हम कह रहे थे और जब सॉलिड रीजंस मौजूद थी उस वक्त लगाया नहीं, अब पॉलिटिकली मोटिवेटेड होगा ये, और ये इकदाम फौरी तौर पे चैलेंज हो जाता है, और अच्छा, इससे सियासी अनारकी जो है वो बढ़ेगी। एक और चीज़ भी है कि जब हम बात ये कर रहे हैं कि अच्छा, ये जो मैंने आपसे सवाल किया था आर्टिकल 232, 33, 34 का, वो 18th अमेंडमेंट के बाद आपको पता भी है कि असम्बली को ये इख्तियार खुसूसी दे दिया गया था, आप उसका जवाब भी दे चुके हैं। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ इस वक्त कि जो सिचुएशन इस वक्त बन रही है, वज़ीर आज़म साहब भले कार्रवाई करते हैं, लेकिन वोट इन अरकान का काउंट हो जाएगा जब ये तहरीक अदम एतमाद के लिए वोट देंगे। उसके बाद स्पीकर भले भेज दें रेफरेंस, 30 दिन में वहाँ पर इलेक्शन कमीशन को फैसला करना होगा, फिर वो आगे सुप्रीम कोर्ट मामला जाए तो 90 दिन में वो फैसला करना होगा, तो उस वक्त तक गल तो मुक जाएगी अज़हर सिद्दीक साहब। अच्छा देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से जब वोट डालेंगे तब की बात है। मिसाल के तौर पर अगर स्पीकर कोई अपना इवल जीनियस है तो वोट डाले भी आपको, वो रूलिंग दे दे के जनाब ये 172 वोट नहीं है, तो उसकी रूलिंग कहीं चैलेंज नहीं हो सकती है। ये देखे मैं लेट्स डेविल्स एडवोकेट के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ, तो ये इतना आसान का मुझे नजर नहीं आता। स्पीकर साहब अच्छा, अभी मैं मॉर्निंग दूसरी शो बात देख एक रहे बात हुए ना, करना तो बड़े चाहूंगा। इशारे मिल जाएंगे उनको आपसे। देखिए आर्टिकल 234 बड़ी क्लियर है, 2 महीने के लिए आप अभी रेजोल्यूशन तो अगर एक्सटेंड करना है तब जाएगी। 234 के तहत वफाकी हुकूमत को आज भी इख्तियार मौजूद है कि गवर्नर अगर हालात और वाकयात सामने ऐसे आते हैं, गवर्नर पोजीशन इनके पास आती है, तो गवर्नर राज का यानी आपके पास इससे बड़ा गवर्नर राज का एक सबूत क्या है कि सिंध हाउस के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो रहा है। आई डोंट थिंक सो कि आप वफाक में बैठे हैं, आप अपने बंदे बिठाकर और ये सारा कुछ करें, ये तो इजाजत नहीं दी जा सकती। और जैसे खालिद महबूब सिद्दीकी कहते हैं कि उन्होंने तो एडवाइस किया था, तो वो अलहदा बात है, चैलेंज होगा। 2009 में यही पीपल्स पार्टी ने पंजाब के अंदर गवर्नर राज का निफाज किया था, तो ये अगर कहा जाए तो रास्ता मौजूद है आज भी। लेकिन उसमें एक और बात हुई थी अज़हर सिद्दीक साहब, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब को डी सीट कर दिया था, डिस्क्वालीफाई कर दिया था, उनका इलेक्शन मैटर था। तो सुप्रीम कोर्ट में पहले फैसला आया, उसके बाद फिर गवर्नर राज लगाया गया, और वो गवर्नर राज भी फिर जब लॉन्ग मार्च गुजरांवाला पहुंचा इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली के लिए, जब मैं और आप बहुत ही इनकलाबी हुआ करते थे, उस वक्त फिर वो गवर्नर राज भी वापस हो गया था और इफ्तिखार चौधरी साहब भी अपनी सीट पे बहाल हो गए थे। तो ये इतना आसान काम है जो कह रहे हैं ना। जी बिल्कुल, अज़हर सिद्दीक साहब जिन ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा ऑप्शंस पे स्पीकर कौमी असम्बली और उनका जो वज़ीर आज़म इमरान खान की आइनी और कानूनी टीम है, वो इससे कहीं आगे जाने के लिए भी सोच चुके हैं। लेकिन अभी तमाम इक़दाम जो हैं वो रखे हुए हैं संभाल के, और ये होगा, ये बदमज़गी भी होगी और ये पूरे मसल शो किए जाएंगे। और इवन अभी तक तो कौमी असम्बली का इजलास बुलाया ही नहीं गया, अभी तक तो किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ। अच्छा मैं एक बात करूं यहाँ पर, चेयरमैन सेनेट, अच्छा मैं एक बड़ी जबरदस्त बात है, बात कंप्लीट कर हाँ जी जी जी, चेयरमैन सेनेट सादिक हिंजरानी साहब से स्पीकर की मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि जो आपने 2019 में रूलिंग दी थी कि अदम एतमाद के लिए डिप्टी चेयरमैन की अदम एतमाद आई थी, तो उसके लिए रिक्विजिशन पे इजलास नहीं बुलाया जा सकता, तो क्या वो मैं रूलिंग दे सकता हूँ? तो वो भी स्पीकर ने अपने जहन में रखा हुआ है कि हम इजलास ही ना बुलाएं, रिक्विजिशन क्योंकि रिक्विजिट किया है उसके लिए फिर रेगुलर इजलास होना चाहिए जो कि सदर ममलिकत ने बुलाना है। तो ये सारे ऑप्शन अभी टेबल पे मौजूद हैं। अच्छा जी अज़हर साहब, अच्छा मैं एक बात कर देता हूँ। जी जी, आर्टिकल 54 में लिखा तो है कि
अंदर मिलाना है, मगर ये मैंडेटरी नहीं है, डायरेक्टरी या कॉन्सिक्वेंस नहीं है। आर्टिकल 256 में चले जाएं, जो मुकर्ररा वक्त है उसके मुताबिक कोई काम ना किया जाए तो वो इनवैलिड नहीं होगा। इसी तरह आर्टिकल 95 में 3 दिनों से 7 दिनों के अंदर अदम एतबात में वोटिंग होनी है, अगर उसमें भी अमल ना किया जा सके, यानी बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए आपने खुद डिस्क्रिप्शन दी हुई है, अब ये सारी सियासी जमातों ने 18वीं तरमीम के जरिए प्रोवाइड की है, तो यहाँ बहुत कुछ अभी ऐसा हो सकता है। अभी तो मैं इशारों में बात कर रहा हूँ कि अभी बहुत कुछ चीजें, जैसे साबिर शाकिर ने कहा, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी सामने नहीं है। क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है कि इस मुल्क में फेयरनेस लानी है, इस मुल्क में आपने सब ट्रांसपेरेंसी लानी है। अभी जो कुछ भी हो रहा है इसको हम बिल्कुल जमीर की आवाज नहीं कह सकते, कोई ये नहीं कह सकते ये राइट टू, यानी ये बिल्कुल कानून के मुताबिक हो रहा है। कानून के मुताबिक हो रहा था, घरों में बैठकर वो आते हैं, जमीर की आवाज में असेंबली में आते हैं और वोट देते हैं, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है इसको किसी ने जमीर की आवाज नहीं कह सकते। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीकी साहब और सर साबिर शाकिर साहब, आपने अलग सुबह से गुफ्तगू की और मतलब ये है कि हमारे मॉर्निंग शो को एक करंट अफेयर्स का तड़का लगाया, बड़ा शानदार। लेकिन ज़रूरी है भाई, आप ये देखें कि क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये भी ठीक नहीं है दूसरी जानिब हुकूमती तरफ से जब ये कहा जा रहा था कि भाई आप अदम एतमाद लेके आएँ, आप वहाँ पर सड़कों पे ना निकलें, जमहूरी रास्ता अपना है, तो जमहूरी रास्ता तो अदम एतमाद है। अब उसके लिए नंबर्स गेम कैसे पूरा करना है वो हर कोई अपनी इस्तेदाद के मुताबिक कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बात करेंगे, लेकिन अभी एक वक्त हुआ है ब्रेक का। बैक वंस अगेन, और अब हम एक ऐसे टॉपिक की जाने बढ़ने लगे हैं जिसको सुनकर हमें ख़ुद को भी शर्म आती है, और मेरे ख़्याल में जो इससे मुतासरा फ़रीक है उसके बारे में, उसके जज्बात के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं। बेसिकली बात हो रही है वालिदैन की। वालिदैन जो बच्चे को पैदाइश से लेकर, पैदाइश से जो तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है वो मरहला अलग, उसके बाद उनकी परवरिश से जिस कठिन मामलात से, हालात से उनको गुजरना पड़ता है, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है जज्बात की, एहसासात की, और इसके अलावा पैसे की एक अलग इन्वेस्टमेंट, फिर उसमें जो तगदो करनी पड़ती है, जो एफ़र्ट्स उनको करनी पड़ती हैं, उसका भी कोई मुतबादिल नहीं है। लेकिन बात यह है कि यही बच्चे, यही औलाद जब बड़ी होती है तो ये भूल जाती है एक एक उस लम्हे को जो इनके वालिदैन ने इनके साथ गुजारा होता है, इनकी परवरिश के लिए जो इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की होती है। लेकिन जब बात आती है औलाद की, तो यही अपने पेरेंट्स को बेसहारा छोड़ देते हैं, ओल्ड होम्स में छोड़ आते हैं। कभी कभार तो ओल्ड होम्स तक की नौबत ही नहीं आती, घर से बस निकाल देते हैं कि आप जहां मर्जी जाएं, हमारे पास ना आया जाए। असल में बात यह है कि अब हम बात कर लेते हैं अपने मुआशरे की। हमारा मुआशरा इस्लामी मुआशरा है। इस्लाम में जिस कदर वालिदैन की खिदमत का दर्ज दिया गया है, जिस तरह से कहा गया है कि तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनके सामने उफ तक ना कहो और कोई आवाज़ ऊंची ना करो, अगर वो तुम्हें डांटें भी तो खामोशी से सुनो। जहाँ पर इस हद तक कहा गया है कि माँ के कदमों तले जन्नत है, बाप की गुस्से और नाराज़गी से और उसकी बद्दुआ से बचने के लिए कहा गया है, तो ऐसे मुआशरे में ज़रा सोचिए कि हम सब कुछ भुला चुके हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो चुकी हैं, हमारी तरजीहात अब मुख्तलिफ हैं। अच्छा, तस्करा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में एक ऐसा केस सामने आया जिसने सबके दिल दहला दिए। वैसे तो हम अपने मुआशरे में जितनी चीज़ें रोज़ाना और तवातुर की बुनियाद पे होते हुए देख रहे होते हैं, तो हम काफ़ी हद तक हम भी संगदिल हो चुके हैं। हम कहते हैं कि ये तो मामूल की बात है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपकी आंखें अश्कबार कर देती हैं। पेशावर हाई कोर्ट में एक मामले की समाअत हुई, बेआसरा वालिदैन थे और मुनफरद केस था, इसलिए कि बूढ़े वालिदैन को बेसहारा छोड़ दिया गया था। और कोर्ट की जानिब से जब समन किया गया 5 बच्चों को अदालत में, तो उनमें से सिर्फ एक वहाँ पर पहुँचा। अच्छा जी, फिर मामला ये था कि वो वालिदैन जो हैं वो 4000 के एक घर में जिसका किराया है वहाँ पर रहते हैं, और उसका किराया देने के लिए इनके 5 या 6 बेटे हैं, उनमें से वो भी तैयार नहीं है। अच्छा, उनको वालिदैन कहते हैं कि हम चाहते हैं कि बस हमें प्यार दें, अपनी बीवी को बेशक खुश रखें, लेकिन हमें हमारा टाइम दें, हमें बेसहारा ना छोड़ें। तो उसके ऊपर वो बेटे तैयार नहीं हो रहे अब तक की मालूमात और इत्तलात के मुताबिक। हाँ जी, और उसमें ये कहा गया कि अगली समाअत पर SHO को कहा गया कि तमाम बेटों को अदालत में कॉल किया जाए, इस बात को यकीनी बनाया जाए। गुफ्तगू के लिए मौजूद है हम साथ समाजी रहनुमा सारिम बरनी साहब, और उनके साथ एक ऐसी ही मुतासरा खातून सुल्ताना अम्मा मौजूद हैं, उनसे अच्छा, बात करेंगे। एक और चीज़ भी क्लैरिटी उसकी कि उन वालिदैन को हमने कोशिश की कि किसी तरीके से बात कर सकें, उनसे जान सकें, लेकिन वो कहते हैं कि ये तो हम बस अपना हक चाहते हैं, लेकिन बेटों के ख़िलाफ़ हम
مزید بات کرنا نہیں چاہیں گے, بالکل ورنہ ایسے ہی ہے. ان کو بھی ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ والدین کے حقوق پر قانون کیا کہتا ہے, اس پر گفتگو کرنے کے لیے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ بار کے سابق وائس پریزیڈنٹ غلام مرتضیٰ چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بالکل جی, تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں سارم برنی صاحب سے. سارم بھائی بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائے. سلطانہ اما آپ یہاں پر موجود ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور سارم بھائی, یہ جتنا مطلب ظاہر ہے کہ تمہید ہم نے کچھ لمبی باندھی, لیکن یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر ہمیں جتنی تعلیمات دی گئی ہیں, جتنا کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کی بات سننی ہے اور کسی کی نافرمانی نہیں کرنی تو وہ اپنے والدین کی کرنی ہے, اس کے باوجود یہ سلسلہ آپ تو اکثر و بیشتر دیکھتے ہوں گے. یہ بھی ایک مثال آپ کے ساتھ دیکھیں سمجھ میں نہیں آ رہا. اور آج بھی ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں, جیسے بھی آپ وہ پشاور والے ماں باپ کا بتا رہے تھے کہ اگر ان کو بولو نا کہ آئیں ٹی وی پہ آ کر کے بتائیں تو وہ نہیں چاہتے کہ بچے بے عزت ہوں. اگر ان سے بولے چلے ہم چل کے ایف آئی آر درج کرواتے ہیں تو وہ نہیں چاہتے کہ ہم جا کے بچوں کو بند کروائیں. لیکن وہ اتنے بد نصیب بچے ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اپنے ماں باپ کی ذرا سی سپورٹ کر دیں, ذرا سا ان کا خیال کر لیں. ماں باپ کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے, یقین جانیے, صرف ایک دو میٹھے بول جسے کہتے ہیں نا, میٹھے بول چاہیے ہوتے ہیں ان کو. یقیناً سڑک پہ نہیں جائیں گے, اگر اپنا گھر نہیں ہے رینٹ دے دے بچہ, ایک نہیں دے, دو مل کے دے دیں, چار مل کے دے دیں. لیکن میں نے بڑے بڑے لوگوں کو ایسے بھی دیکھا ہے جو عمرے پہ عمرے, حج پہ حج تو کیے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے ماں باپ جو ہے نا اداروں میں موجود ہوتے ہیں. یعنی کہ صرف زبانی حد تک, حالانکہ نماز خود ایک حکم ہے, پڑھتے رہیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے. دین کیا بتا رہا ہے اس پہ عمل نہیں ہو رہا, قانون کیا بتا رہا ہے اس پہ عمل نہیں ہو رہا. کوئی بھی مذہب ہو, کوئی بھی دین میں سب کا, جس کا بھی جو بھی مذہب ہے, بالکل ایگزیکٹلی. لیکن افسوس یہ ہے کہ ذرا سا کہیں کوئی کسی قسم کا عمل نہیں ہے. یہ سلطانہ اماں بیچاری, ان کی عمر دیکھے, ان کا حال دیکھے, کینسر ان کے ہو گیا تھا, یہ سب آپریٹ ہوا ہے, اور جو کچھ تھا وہ بھی لوٹ لیا. اور بیٹے کیا, ہم تو بیٹوں کو برا کہہ دیتے نا بڑے اس سے کہ جی بیٹے یوں کرتے ہیں, یا بیٹی ہوتی تو یہ نہ ہوتا. ان کے ساتھ تو جو آخری جو سین ہوا ہے وہ بیٹی نے کیا ان کے ساتھ. تو یہ نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ان کی پلیز آپ حوصلہ کریں, آپ روئیں نا. دیکھیں ہم بھی آپ کے بچے ہیں, یہاں پر آپ موجود ہیں, لیکن یہ بتائیں آپ ہوا کیا آپ کے ساتھ, یہ آج یہاں پر آپ ان کے ساتھ موجود ہیں, کیا ہوا؟ کتنے بچے ہیں آپ؟ 4 میں نے بتا, 3 بیٹے 1 بیٹی. اچھا. اور بچوں کو میں نے اتنی مصیبت سے پالا. باپ تھے, جب باپ تھے ان کو مرے ہوئے 17 سال ہو گئے, انتقال ہوئے. اس سے پہلے میں گھر میں بیٹھ کے خود محنت کرتی تھی. دبئی میں اس کو یہاں تک تعلیم دی, گریجویٹ بنایا. میں نے کہا ہم کچھ بھی اس کو خوب پڑھایا. میں وہ بہت عزیز تھا, طاہر نام. اچھا, بہت اچھا مزید لگتا تھا. دوسرے بیٹے کو پڑھایا لکھایا. جب وہ بڑے ہو گئے, حوصلہ کریں, انہوں نے ہمارا گھر بکوایا. اچھا, گھر بکوا دیا؟ جی. وہ میں چاہتی تھی جیسے اچھے لوگوں سے, اچھے لوگوں میں بیٹھیں, غلط لڑکوں میں مت بیٹھو بیٹا. ہم نے اتنی محنت سے تمہیں پڑھایا لکھایا, سب کچھ دے رہے ہیں تمہارا, ہم دونوں محنت کر کے تمہارا خرچہ پورا کر رہے ہیں. لیکن ہم دیکھتے تھے کہ کچھ لڑکوں میں بیٹھنے لگے. والدین ہی ہیں جو برے کاموں سے, بری جگہ سے, بری کمپنی سے روک ٹوک کرتے ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ تو ایک بہت بڑا احساس ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو روک ٹوک کرتے ہیں. میں نے کہا بیٹا دیکھو یہ لڑکے اچھے نہیں ہیں, آپ تو ہمیں گھوٹ گھوٹ کے مارنا چاہتی ہیں, باہر بھی نہیں. میں نے کہا باہر نکلنے کو نہیں میں منع کرتی ہوں, کرکٹ کھیلو جاؤ, لیکن یہ غلط نہیں. یہ سارے علاقے میں لڑکے مشہور ہیں, خراب ہیں, اور میں ان کے ساتھ دیکھتی ہوں تو مجھے برداشت نہیں ہوتا. اس میں انہوں نے بدتمیزی کرنی شروع کری. باپ بیچارے ایسے تھے, ڈر جاتے تھی. میں ذرا بولتی تھی, میں نے ان کو ڈانٹا بھی. آپ کا حق ہے, آپ ماں ہیں, آپ نہیں تو پیچھے پیچھے گھومتی تھی. میں جہاں بیٹھتے تھے وہاں سے لاتی تھی, ڈانٹتی تھی. اسی میں وہ گھر سے بھاگ گئے. گھر سے بھاگ گئے؟ جی. کیا آپ ہمیں گھوٹ رہے ہیں, آپ تو گھوٹ گھوٹ کے مارے, ہمیں آزادی چاہیے. یعنی کہ والدین اصلاح کریں تو اس کے اوپر یہ رویہ. جی. اس کے ساتھ ہی اب جب بڑا بھاگا تو دوسرے نے بھی یہی رویہ کرا کہ آپ نا, آپ کے ساتھ
क्या बात है। मैंने कहा देखो अच्छी मैं तुम्हें तालीम इसलिए, उनके बाप के अरमान ये था कि मैं अपने बच्चों को 4 बेटे थे, 1 बेटा मर गया था। अच्छा। अरे मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे इतने काबिल बने कि हम नहीं बने, हम मुसीबत में ज़िंदगी गुजार रहे थे, हमारे बच्चे अच्छी ज़िंदगी, लेकिन उन्होंने एक कहना बाप से बदतमीजी करनी शुरू कर दी। अच्छा। मेरे साथ बदतमीजी करनी शुरू, जा रहे हैं रात के 2-2 बजे आ रहे हैं 3, हम जाग रहे बैठे देख रहे हैं, डांट रही हूँ मैं डांटती थी, मुझे ही कहेंगे कि हमारी माँ ने मैं डांटती थी कि बेटा इसलिए तुम्हें हमने पैदा नहीं, इसलिए ने मैंने तालीम नहीं दिलाई तुम्हें, इसलिए ने पढ़ाया लिखाया नहीं कि तुम इस रवैये, पहले मैं तुम्हें अच्छा बुरा समझाती हूँ। इसमें फिर वो ये कॉलेज है या SM कॉलेज, इसमें ग्रेजुएट, इसके ज़रिए वो ऑल पाकिस्तान टूर पे चले गए। अच्छा जी, वहाँ से आए हैं तो बहुत कुछ तब्दील हुआ था उनसे, क्योंकि वहाँ लड़के थे अजीब, उन्होंने अथला तक उनकी गोद में डाला। कह रहे तुम अपने हम अम्मी से डरते हैं, कह रहे माँ से डरते हो, क्यों डरते हो माँ से, माँ ऐसे ही तुम बुरी सोहबत से फिर यही सीखते हैं। अच्छा ये बताएं आप बर्नी साहब के साथ कब मुंसलिक हुई, घर से कैसे निकली, हाँ, बेघर तो कैसे हुई, ये बस वो फिर इधर कई दफ़े मैं लाई, बाप भी लाए उनको पकड़ के कि बेटा घर, अच्छा कहने लगे हमें पैसा चाहिए, तो पैसा, हम गरीब आदमी थे बेटा, दोनों मेहनत मजदूरी, हमने कहा पैसा नहीं तो ये घर बेच दो, हम आपको 1 साल के बाद बहुत अच्छा घर बना के देंगे, शाबाश, ये घर बेच दो। मैंने इसमें वो करा, एजेंसी वालों से 2 दफ़ा बयाना वापस, मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँगी, मैं रोड पर जाऊँगी, क्या बच्ची है साथ मेरे, कह लगे नहीं है हम आप तो, उन्होंने बाप बहुत सीधे थे, उनको ले लिया हाथ में कि ये अम्मी तो हर बात में रुकावट करती हैं और घर आप बेच दें। मैं वो कहने लगे भाई बेच दो, बच्चों को जुआ खेल लो, बेच के दे दो उनको पैसा, घर बेच के सारा पैसा जो दुबई चला गया उसने लिया, उसने फिर शादी करी एक लड़की से, शादी कर ली, खुद ही लिया है, खुद ही कर ली, हमने कुछ नहीं बोला, हमने तस्लीम कर लिया, उस लड़की को भी हमने गले लगाया। आंटी कितना अरसा हुआ आपको, आप अपने बच्चों से ना मिले हुए? मुझे कह रही है 22 साल हुए। अच्छा सारिम भाई आपके पास ये मौजूद है, मीनवाइल और भी आपके पास ऐसे, आप प्लीज रोए नहीं, अल्लाह ताला आपको अभी आप पूछ रहे थे कैसे पहुंचे, मैं ये बल्कि कहूँगा कि हमारे यहाँ टीवी पे या प्रोग्रामों पे एतराज़ तो करते हैं, लेकिन ऐसे भी प्रोग्राम है ना, ये अगर टीवी ना देखती होती, अगर हम ऐसी चीज़ें ना ला रहे होते तो ये आज किसी सड़क पे पड़ी होती कि अल्लाह माफ़ करे पता नहीं किस हाल के अंदर होती। ये टीवी ही से मुझे जानी और मेरा नाम लेकर के मुझ तक के पहुंची है। ऐसी कितनी माएँ आपके पास मौजूद? बहुत सारी, मैं गिनती तो नहीं बता सकता, बेहिसाब माएँ क्या, बाप क्या, बच्चे क्या, आज जो दौर है ना, ये बच्चा मुझे अजीज है, बस अल्लाह ताला उनको इसका अजर देगा। बच्चा मेरा अजीज है, मुझे ने बहुत संभाला, मेरी सांसें भी नहीं दी, अल्लाह ताला जिस वक्त मैं आई हूँ अल्लाह ताला इनको और हौसला अजर देगा। हिम्मत अच्छा कानून जरा इस पे क्या कहता है? ज़ाहिर है कि एक ऑर्डिनेंस भी लेके आए थे 2021 में, उस पर क्या होता है, तो गुलाम मुर्तज़ा चौधरी साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी, उनसे बात करते हैं। सर बड़ी दुख भरी स्टोरी है, एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में अब तवातुर से हो रही हैं और एक दिल दहला देने वाला वाक़यात हैं जिनका सिलसिला रुक नहीं रहा। ये तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन जो ऑर्डिनेंस लाना पड़ा हुकूमत को, ये पास किया गया था, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, तशरीह क्या की गई है और क्या अभी इस पे अमल दरामद किसी हद तक हो रहा है आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रदर, इसमें ये अल्लाह का शुक्र है कि कुछ मुआशरे को एहसास होने लगा है और कुछ हुकूमत को एहसास होने लगा है कि ये तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस जो है इन्होंने बनाया। हालांकि जैसा कि आपने पहले फरमा दिया, पहले गुफ्तगू काफ़ी हो चुकी इस बारे में कि वालिदैन जब या उनमें से कोई एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो उनको उफ तक भी मत कहो, उनके सामने ऊंचा ना बोलो, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वालिदैन के हुकूक के ऊपर एक PhD होनी चाहिए, जिसके बारे में कोई भी मज़हब जो है वो वालिदैन के हुकूक को डिसोन नहीं करता, और इस्लाम ने तो अखीर कर दी है इस अमर में वालिदैन के हुकूक के बारे में। अब ये जनाब को पता है कि जब कोई कानून बनाना होता है फौरी उसकी ज़रूरत होती है, ये कानून बनाना असम्बलियों का काम है।
असम्बली जब सेशन में ना हो, सेनेट तो जब सेशन ऑर्डिनेंस में ना जारी हो हो, जाता है। तो फिर उसके लिए सदर पाकिस्तान को कानून की अपना आइन की आर्टिकल 89 के तहत ये इस्तेहकाक है कि वो कोई भी आर्डिनेंस जो है वो पास कर सकते हैं 90 दिन के इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट में, कौमी मफाद में। तो ये जो आर्डिनेंस है ये भी सदर मुमलिकत ने 8 मई 2021 को इसको प्रोमलगेट किया और इसका दायरा इख्तियार पूरे पाकिस्तान का था। इसके लिए जो वज़ा किए गए कवानीन उसमें वालदैन के हकूक़ का तफ़ज़ किया गया, वालदैन की डेफिनेशन की गई कि वालदैन में कौन कौन लोग शामिल होंगे और बच्चों में कौन कौन से शामिल होंगे। इसमें वालदैन में वालिद, वालदा, दादा, दादी, नाना, नानी या परनाना, परनानी, परदादा, परदादी जैसे भी अगर ऊंचे जाएं तो ये उसमें शामिल होते हैं। इसी तरह औलाद की डेफिनेशन में ये बताया गया है कि बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, नवासा हो, नवासी हो, वो औलाद की डेफिनेशन में आएंगे। और अगर उनमें से सर लेकिन एक चीज़ बस एक चीज़ की वजाहत मई में जारी हुआ था गुज़िश्ता साल, अब ये है कि साल गुजर चुका है, 90 दिन के अंदर असेंबलियों से पास होना ज़रूरी है। तो अभी क्या है कि अभी ये इफेक्टिव है या नहीं है? ये मेरे इल्म के मुताबिक ये अभी तक ये असेंबली में पेश नहीं हुआ और पास नहीं हो सका। तो फिर इसका मतलब है कि और ये इसको पास होना चाहिए। बाकी जो बिल हैं वो पास हो रहे हैं। ये इतना अहम बिल है कि इसको फौरी तौर पे असेंबली में पेश करके, गैर मुतनाज़ा ये बिल है और इसको ये फौरी तौर पर पास होना चाहिए और इसको एक्ट बनना चाहिए, इसको नाफिजुल अमल होना चाहिए। और इसके साथ साथ हम जो है वो हुकूमत के लेवल के ऊपर इसकी एडवर्टीजमेंट भी करें और लोगों को आगाही भी दें। ठीक है। क्योंकि हमारा मुआशरा ऐसा है कि जब वालदैन में के साथ ऐसी माल ट्रीटमेंट होती है, ठीक है, तो वो इधर उधर से कोई हमसाया ने आ गए ना जी छोड़ें जी आपके बच्चे हैं, या वालदैन को कहेंगे नहीं कोई बात नहीं आप बड़े हैं, ये छोटे हैं, आप मेहरबानी करें, माफ़ करें। हालांकि ऐसी बातें जो है वो नहीं करनी चाहिए। हर बंदे को अपने हकूक़ का इल्म होना चाहिए। ये बिल्कुल जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी कानून बने उसको इन्फोर्स भी होना चाहिए, अमल दरामद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका गुलाम रज़ा चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। सारिम बर्दी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और अम्मा आप भी तशरीफ़ लाएँ, इतना वक्त निकाल के आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको मज़ीद हौसला दे और हिदायत नसीब करे ऐसी औलाद को जो कि वालिदैन को तंग करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। और टंडो अलायार में जनाब करोड़ों रुपए से एक तामीर किया गया स्पोर्ट्स हॉल, अब उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसकी वजह से अब ये खंडरात में बदल चुका है। इस पर रिपोर्ट देखते हैं अमानुल्लाह खोखर की। 5 साल हो गए मैं इधर आता था, पहले तो देखता था मशीनें कीमती पड़ी थी, अभी तो वो भी नहीं है। इंतज़ाम ने ऐसी हालत कर दी है, पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं है इधर। स्पोर्ट्स ग्राउंड जिला टंडो अलायार के नौजवान खिलाड़ियों के टैलेंट को मायूसी के अंधेरों में धकेल रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से 2015 में तकमील होने वाला ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आज इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से खंडरात की शक्ल अख्तियार कर चुका है। कैमरामैन टीम के साथ अमानुल्लाह खोखर, ARY न्यूज़, टंडो अलायार। अच्छा जी, ज़रा सोचिए कि हम वैसे बात करते हैं कि किसी चीज़ के ना होने की, यानी कि एक सहूलत है ही नहीं। यहाँ पर अलमिया ये है कि गलती से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए तो उसको देखने वाला कोई नहीं है। अब ये इस पे करोड़ों रुपए लगे होंगे, अब ये निकाले जाएं उन लोगों की जेबों से जिन्होंने इसका ध्यान नहीं दिया। मशीनरी वहाँ से गायब हुई, कुर्सियों की हालत ऐसी है जैसे लग रहा है सदियों से कोई वहाँ पर बैठा ना हो। अलमिया है। बिल्कुल ऐसे ही। ब्रेक लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। वक्त हुआ चाहता है अगले हिस्से का, यानी अब 10 बज चुके हैं तो हमारे शो का अगला हिस्सा शुरू हो जाएगा। और जिस तरह से अशफाक हमारा आखिरी टेस्ट मैच पाकिस्तानी टीम और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो होना है शुरू, वो पीर से शुरू हो रहा है। लेकिन उसके बाद असल मज़ा आएगा जब हमारे ODI शुरू होंगे, यानी वनडे हमारे मैचेस शुरू होंगे। और 29 मार्च से उसका आगाज़ हो जाएगा। 3 हमारे वनडे होंगे और 1 T20 भी है। जस्ट इमेजिन कि इधर दमादम मस्त कलंदर और उधर क्रिकेट के मैदान में दमादम मस्त कलंदर। इट वुड बी ग्रेट टू सी। आई होप के मैचेस अपने मंतखी अंजाम तक सही तरह से पहुंचे। अच्छा, दूसरा ये है कि आज दुनिया के सोने का दिन है, यानी कि वर्ल्ड स्लीप डे। यानी कि ये नहीं है कि आप समझें कि सारे सो रहे होंगे। तो आप ज़रा थीम सोचिए। मैं तो थीम इसकी पढ़ के और जो स्लोगन है पढ़ के ही हंस रहा था। एक था क्वालिटी स्लीप, साउंड माइंड, हैप्पी वर्ल्ड। अब यहाँ पर 4 घंटे की स्लीप
پھر بھی مناسب مائنڈ اور پھر اس کے بعد ہیپی ورلڈ کہاں سے ہوگی؟ تو بھائی نیند بڑی ضروری ہے اور نیند کے اندر آپ کی باڈی جو ہے اس کو ریکور کرنے کا چانس ملتا ہے. ریکوری اور ہیلنگ فیز ہوتا ہے, یعنی کہ جو بھی ایموشنل اور فزیکل ٹربل یا اسٹریس ہو یا کوئی بیماری کا بھی آپ شکار ہو تو اس کے اندر ڈاکٹر کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ آرام کریں, نیند اپنی پوری کریں, تو وہ کئی چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں. تو آج کا دن اسی حوالے سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں. چلیں جی, آج یہ عہد کریں کہ آپ نے سونا ہے اور بھرپور انداز میں سونا ہے, لیکن یہ نہیں کہ سارا دن ہی سونا ہے. یہ نہ کہیں کہ سوتے سوتے آپ سب کچھ کھو دیں اور دفتر نہیں جانا تو آپ سوتے رہیں. اچھی نیند سونا ہے. سونے سے پہلے اپنے آپ کو اسٹریس فری کرنا ہے اور موبائل کو وہ جو کہتے ہیں نا اسکرین ٹائم جو ہے وہ 1-2 گھنٹہ پہلے ہی ختم کر دینا, اس کو بند کر کے پھر سکون سے پھر آپ نے نیند لینی ہے. چلیں جی, ابھی ٹاپ اسٹوری شامل کرتے ہیں, اس کے بعد آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے اور T20 سیریز کے لیے قومی اسکواڈز کا اعلان. محمد حارث اور لیفٹ آرم اسپنر آصف آفریدی بھی اسکواڈ میں شامل. کھانا کھائیں لیکن معدے کو زیادہ نہ آزمائیں. فاسٹ فوڈ اور چٹپٹی غذائیں تیزابیت اور سینے میں جلن کا باعث بنتی ہیں. احتیاط ضروری ہے, ماہرین کا مشورہ. اور ٹنڈوالہ یار میں کروڑوں روپے سے تعمیر سپورٹس ہال کا برا حال. عدم توجہ کے باعث عمارت کھنڈر ہو گئی, قیمتی سامان بھی چوری ہو گیا. اچھا جی, تو اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پہ, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ. اس کے ساتھ ساتھ بار دنیا میں رہو, غم زدہ یا شاد رہو, ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو. اچھا, یہ اشعار تو ہمارے سامنے موجود رہتے ہیں, ہم اپنی درسی کتب میں پڑھتے بھی رہے ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن ہماری زندگی میں کسی بھی چیز میں نظر نہیں آتی, مسئلہ ہے اس کے کہ اس میں ہماری کوئی منفعت یا فائدہ ہو. اور آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانیت کا جو جذبہ ہے وہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ عورت کی دشمن ہوتی ہے, لیکن ایسی خواتین بھی ہیں جو ایک دوسرے کو امپاور کرنے کے لیے, ایلیویٹ کرنے کے لیے, ان کو سہارا دینے کے لیے سامنے آتی ہیں. انہی میں سے ایک خاتون کا ذکر ہم کریں گے جو کہ سکھر کی رہائشی ہیں, شائستہ بلوچ ان کا نام ہے. تقریباً 1 دہائی سے مظلوم بے سہارا خواتین کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں. یہ کیا کرتی ہیں جناب, یہ گاؤں گاؤں جا کر ملاقات کرتی ہیں, ان کی مسائل سنتی ہیں, پھر مسائل حل کرنے کے لیے عملی اقدامات بھی کرتی ہیں, جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سنتے تو ہیں. آپ کو ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ان میں ایمپتھی کا جذبہ پایا جاتا ہے, وہ ہمیں سن تو لیتے ہیں, لیکن اس کے مسائل کے حل کے لیے وہ اس طرح سے ہمارے ساتھ جو کہتے ہیں کہ ایکشن یا امپلیمنٹیشن وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ہوتے. لیکن ایسی ایک خاتون جناب شائستہ بلوچ ہیں, کیا کیا کام کر رہی ہیں, اس حوالے سے انہی سے بات کر لیتے ہیں. بالکل جی, شائستہ میں جوائن کر رہی ہیں. شائستہ, بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ بتائیے گا کہ یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا کہ آپ نے جی خواتین کی بہتری کے لیے کچھ کرنا ہے, اور کتنے عرصے سے آپ یہ کر رہی ہیں؟ جس کمیونٹی سے میں بلانگ کرتی ہوں تو وہاں پہ خواتین کے ساتھ کافی مسئلے درپیش تھے, مگر وہ ان کو حل کرنے کے لیے کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا, نہ ہی وہاں پہ کوئی آرگنائزیشن کام کر رہی تھی, نہ ہی کوئی سیاسی بندہ کام کر رہا تھا. تو ان کے حوالے سے مجھے خیال آیا کہ یہ ہماری خواتین کب تک ظلم ستم برداشت کرتی رہیں گی, کاروکاری کے نام پہ ان کو قتل کیا جائے گا یا تو غیرت کے نام پہ ان کو قتل کیا جائے گا. تو ہمارے جو بلوچ کمیونٹی میں فیمیل کا نکلنا وہاں پہ بہت مشکل تھا, اسی لیے میں نے اپنے گاؤں سے کام اسٹارٹ کیا. تقریباً 8 سال ہو گئے میں کام کر رہی ہوں. اچھا شاہد صاحب, علاقوں میں آپ کام کر رہی ہیں وہاں پر یقیناً بہت ساری مشکلات ہوں گی, کس طرح سے ان مشکلات کا سامنا کرتی ہیں اور آپ کو ہیلپ آؤٹ کون کر رہے ہیں اس مشن میں؟ اس مشن میں مجھے سب سے زیادہ اپنی فیملی کی سپورٹ رہی اور میری فرینڈس کی سپورٹ رہی, کیونکہ میں جو کام کر رہی ہوں اپنی فیملی کی سپورٹ سے کر رہی ہوں. اگر میری فیملی کی سپورٹ نہیں ہوتی تو شاید یہ کام میں نہیں کر پاتی, کیونکہ جن علاقوں میں ہم کام کر رہے ہیں وہ بہت ہی, وہاں پہ کوئی علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ خواتین بالکل جاتی نہیں ہیں, تو کافی دشواریاں پیش آتی ہیں. سب سے پہلے تو ہم ان علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پہ خواتین کا نکلنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور خواتین کو باہر نکالا ہی نہیں جاتا اور تعلیم سے بالکل بچیوں کو محروم رکھا جاتا ہے. تو دشواریاں تو کافی پیش آئی ہیں, مگر فیملی کی سپورٹ کے حوالے سے اور کہیں کہ ہمیں پولیس کی بھی سپورٹ مل جاتی ہے یا وہاں کے علاقے کے جو لوکل ہوتے ہیں تو وہ ان کی بھی سپورٹ ہوتی ہے کہ ہم خواتین, جو لوگ چاہتے ہیں کہ خواتین کے لیے کام ہو, خواتین آگے آئیں اور آگے بڑھیں, خواتین تعلیم حاصل کریں, تو وہ لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اچھا جی, تو اب یہ بتائیں آپ کی جو NGO ہے
वो किन किन शहरों में ख़वातीन की मदद कर रही है? जैसे कि हमने स्टार्टिंग सखर डिस्ट्रिक्ट से काम किया था और इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सिंध में हम लोग काम कर रहे हैं। तो सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में हमारे यूनिट ओपन है। कोशिश होती है ख़वातीन से हमारा खुद रब्ता रहे। अगर ख़वातीन रब्ता नहीं कर पाती तो जो हमारी टीमें काम कर रही हैं, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे यूनिट बने हुए हैं, तो उन तक वहाँ ख़वातीन पहुँचती हैं अपने मसाइल लेकर। तो हम कोशिश करते हैं कि खुद जाकर उनके मसाइल हल करें। शाइस्ता, एक और चीज़ के ऐसी ख़वातीन जो खुद काम करना चाहती हैं, खुद कमाना चाहती हैं, छोटा मोटा कोई सेटअप कायम करके, उनको आप किस तरह से हेल्प आउट करती हैं? कर्ज देती हैं या फिर कुछ सेटअप बना कर दे देती हैं? नहीं, हम कर्ज नहीं देते, सरमाया लगाकर उनको काम स्टार्ट करके देते हैं। और ऐसी ख़वातीन जो बिल्कुल बेसहारा होती हैं, तो हम चाहते हैं कि ख़वातीन एक जो है अपने पाँव पे खड़ी हों और बाख्तियार बने, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकें, अपने घर का सही से गुजर सफ़र कर सकें। अगर हमको कर्जा देते हैं तो उनको वापसी करने में काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आती हैं, फिर उनके घर के हालात बेहतर नहीं हो सकते। अच्छा, और हम ये देखते हैं सिंध और बलूचिस्तान में एक जो रस्म है जिसकी वजह से कई ज़िंदगियाँ जाती हैं, उनमें से एक कारोकारी है, ये गैर इंसानी रस्म है, उसकी रोकथाम के लिए आप लोग क्या इक़दाम कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं? कारोकारी के हवाले से हम लोग जहाँ ये केसेस होते हैं वहाँ पे जाके हम सेशन कंडक्ट करवाते हैं। इसके अलावा जो भी केस होते हैं तो वो फौरी तौर पे हम उनके पास जाकर वो केस पुलिस में रिपोर्ट करवाते हैं, क्योंकि जहाँ इलाकों में ये इश्यूज़ होते हैं वो केस रिपोर्ट नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे पुलिस भी जाने से कतराती है, क्योंकि वहाँ जहाँ पे औरत को गिरत के नाम पे कत्ल किया जाता है, तो वहाँ के जो सबसे ज़्यादा वहाँ का जो वडेरा होता है वो इन चीज़ों में मुलविस होता है। तो वही पुलिस को रोक देता है कि आप लोग ये केस जो है रिपोर्ट ना करें, एफआईआर नहीं होनी चाहिए इस केस की। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे केसों की एफआईआर करवाएं और जो भी इनमें मुलविस हों उनको सज़ा दिलवाएं। चलें जी, शाइस्ता बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थी, बड़ा ही अच्छा काम करिए, अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त बराह रास्त आपको लिए चलेंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, गुफ्तगू करें होगा। और जो बदनामी सियासत और सियासतदानों की गई है उसका अवाम फैसला करेंगे कि आज मुल्क को किसने मुश्किलात से दो चार किया, किसने मुल्क की मईशत तबाह की, ये अवाम के फैसले हैं। करप्शन अगर पकड़नी है तो उसका निज़ाम मौजूद है। करप्शन का निज़ाम ये नैब का निज़ाम नहीं है, एहतसाब का निज़ाम ये नैब का निज़ाम नहीं है। आप इन अदालतों में जाएं, लोगों की तरह बातें तो सुने कि जो जुल्म नैब कर रही है, जो आज इस मुल्क का सबसे करप्ट इदारा नैब बन चुका है, जिसने इस मुल्क की गवर्नेंस को मफलूज कर दिया है। मैंने हमेशा सवाल किया है, नैब बना था सियासतदानों के एहतसाब के लिए। ज़रा बता दें कि चेयरमैन साहब जो आखिरी कदमों पर हैं, इनकी नौकरी के दिन भी गिने जा चुके हैं, इनका ताल्लुक भी इमरान खान की नौकरी से है। ये आज बता दें कि 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं, कितने सियासतदानों का एहतसाब इन्होंने किया है, किससे क्या बरामद किया है। आज ये आपको बताने से कासर रहेंगे। इनका काम सिर्फ लोगों पर जैली मुकदमे बनाना, उनसे पैसे पकड़ना, हर हाउसिंग कॉलोनी के अंदर घुसे हुए हैं। जहाँ पर पैसे की उम्मीद होती है वहाँ पर आपको नैब मिलेगा, जहाँ करप्शन है वहाँ नैब है, रोकने के लिए नहीं, अपनी जेबें भरने के लिए। यही इस हुकूमत की भी हालत है। आज सिंध को धमकी दी जाती है कि गवर्नर राज लग जाएगा। क्यों गवर्नर राज लगेगा? अगर गवर्नर राज की ज़रूरत है तो आज पंजाब के अंदर है, जहाँ पर वज़ीर आला जो है वो अक्सरियत खो चुका है। उसकी अपनी पार्टी के मेंबरान बगावत कर चुके हैं, खड़े होकर कह चुके हैं कि तुम्हें वोट नहीं देंगे। कल इस्लामाबाद में 20 से ज़्यादा कौमी असम्बली के अरकान ने टीवी कैमरों के सामने कहा है कि हम इमरान खान को वोट नहीं देंगे, हम इसके साथ नहीं है। इसने मईशत को तबाह किया है, इसने अवाम को तकलीफ दी है, इसने मुल्क के मसाइल में इजाफा किया है। आज कोई इखलाकी जवाज़ है हुकूमत में रहने का? आज ज़रूरत इस बात की है कि अवाम के पास फिर जाएं। हम इक़्तिदार में हिस्सा नहीं मांगते, हम ये नौकरियाँ नहीं चाहते। चलें जी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, वो आपने मुलाहिजा की है।
ابھی جناب ایک بڑی خبر ہے اور وہ یہ کہ ویسٹ زون پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے کراچی کی تاریخ کی بڑی کارروائی کرتے ہوئے $1 ارب سے زائد مالیت کی منشیات پکڑ لی ہے. بالکل جی, نذیر شاہ سے اس پہ بات کریں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے, اور ظاہر ہے کہ $1 ارب کو اگر آپ کنورٹ کریں تو یہ 1.79 ارب پاکستانی روپے سے زائد کی مالیت بنتی ہے. تو نذیر شاہ مزید بتا رہے ہیں اس سے متعلق. بالکل دیکھیں, میں سر فلجانی تھانے میں موجود ہوں جہاں کراچی کی تاریخ کی ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے جو ڈی آئی جی ویسٹ اور ایس ایس پی ویسٹ کی سربراہی میں کی گئی. اس وقت ڈی آئی جی ویسٹ ناصر آفتاب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے اس کی تفصیلات جانیں گے. آپ یہ بتائیے گا کہاں لے جایا جا رہا تھا اور اس کی جو وزن وغیرہ وہ کتنا ہے؟ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 5.5 ٹن سے اوپر ہی ہوگی, کم نہیں ہے, وہ ہم ایوریج آؤٹ کر کے آپ کو بتا رہے ہیں. ایس ایچ او سرجانی, ان کی ٹیم زیر سرپرستی ایس ایس پی ویسٹ, انہوں نے جو ایک کرولا کار کو پہلے قابو کیا جس میں سے تقریباً 16 بوریاں نکلی جو آپ کے سامنے یہ نیچے پڑی ہیں یہ والی. ان کی پھر ہم ملزم کو پکڑنے کے بعد اس کی نشاندہی پہ ایک 7C کے ایریے میں ایک ہم گھر میں گودام بنا ہوا تھا, وہاں پہ ہم پہنچے اور اس گودام سے جو ہے ہمیں اتنی مقدار ملی کہ 2 شازور بھر کے لے کر. اس کی بین الاقوامی منڈی میں اور لوکل میں کیا قیمت ہے؟ جی ہمیں اگر منیمم ہم بڑا محتاط اندازہ بھی لگائیں تو $1 ارب سے زیادہ ہی بننے گا جی. تو اچھا آپ بتائیے کہ اس کے اندر کتنے ملزمان گرفتار ہوئے ہیں اور جو مزید اس کے اندر کوئی اور نشاندہی پر آپ گرفتاریاں کریں گے؟ جی ابھی تو عبدالصمد نامی ایک بندہ گرفتار ہوا ہے اور ہم ڈیجیٹل انٹیلیجنس کی بیسس پہ اس کے جو گروپ کے باقی لوگ ہیں ان کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. یہ منشیات کہاں سے رہی تھی اور اس کو کہاں لے جایا جا رہا تھا, کہاں سپلائی ہونی تھی؟ دیکھیں فی الحال تو ابھی یہ انیشل فیز میں ہے. یہ ناردرن بائی پاس سے ہم نے پہلا جو اس کا تھا گاڑی کو پکڑا, اس کے بعد اس کی نشاندہی پہ ہم نے 7C کے گھر پہ چھاپا مارا, تو مزید کراچی میں مختلف مقامات کی نشاندہی ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی ریڈ. مطلب بین الصوبائی نیٹ ورک کو کہا جا سکتا ہے یہ بلوچستان یا افغانستان کسی راستے سے جی بین الاقوامی انٹرنیشنل بین الاقوامی کہا جا سکتا ہے, بین الصوبائی تو چھوٹا ورڈ ہے. جی بالکل دیکھیں یہ بین الاقوامی نیٹ ورک ہے جو بین الصوبائی گروہ کے ساتھ مل کر یہ بڑی مقدار میں یہ منشیات اس کو سپلائی کر رہا تھا, اور اس کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایک ملزم گرفتار ہوا ہے جس سے تفتیش کی جا رہی ہے اور اس کی نشاندہی پر مزید چھاپہ مار کارروائی کی جائے گی. لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بڑی کارروائی ہے جس میں 1 ارب اور 79 ارب اور 50 کروڑ کی مالیت کی ہے جو محتاط اندازہ ہے, یہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے اور یہ بڑی کامیابی ہے ویسٹ پولیس کی. جی اوکے جی, بہت بڑی کامیابی ہے اور واقعتاً $1 ارب. اینٹی نارکوٹکس فورس نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کارروائیاں کرتی ہے, لیکن کراچی پولیس کی جانب سے کیا گیا اور میں تو کیلکولیٹر بیچارہ پریشان ہو گیا تھا کہ کتنی مالیت کی یہ کہاں سے یہ بندہ آ کے کیلکولیٹ کر رہا ہے. تو اس نے اور ابھی آپ یہ دیکھیں کہ صبح صبح اشفاق ستی یہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے, میں نے کہا میرے پاس ویسے نہیں آتے تو صبح صبح کہاں سے آئیں گے. تو بہرحال وہ بھی شرمندہ ہوا, میں بھی ہوا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک ملزم ابھی گرفتار ہوا ہے, پورا نیٹ ورک ہوگا کیونکہ اتنی بڑی جو کارروائی ہوئی ہے اور اتنی بڑی مقدار میں منشیات جو برآمد کی گئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنا یہ لوگ اور کس طریقے سے سپلائی کر رہے تھے اور مالیت چیک کریں. یہاں پر 10,000 روپے کی چیز نہیں ہوتی, ہم دکھا کے مر جاتے ہیں, اور وہ شہزور ٹرکس میں اور پتہ نہیں کس طریقے سے وہ کر رہے ہیں. چلیں جی, پورا نیٹ ورک جو ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے ابھی کارروائیاں مزید کی جا رہی ہیں. ابھی جناب ہم بات کرتے ہیں جو آج کل ایشو جو سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ جیسے ہی گرمیوں کا سٹارٹ ہوتا ہے, اب گرمیوں کا آغاز تو ہو ہی گیا ہے, ایک دم سے سوئچ ہوا ہے سردیوں سے گرمیوں کا موسم, تو اس میں یہ کہ ہمارا کھانے کی روٹین اور ڈائجسٹو سسٹم جو ہمارا ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے, کیونکہ ہم وہ کھانے جو تلے ہوئے کھانے فاسٹ فوڈ وہ سردیوں میں زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ایک دم سے ایسے گرمیاں آ جائیں اور ہماری وہی روٹین رہے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو معدہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے, اس کی وجہ سے پیٹ کے بھی بہت سارے مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. بالکل جی, اور پیٹ کے مسائل ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کی ساری روٹین ہی خراب ہوتی ہے, روٹین ساری آپ کی زندگی جو ہے وہ بالکل ایک طرح سے تباہ ہو جاتی ہے. تو کیوں ہے ایسا, کس وجہ سے ہوتا ہے, اس پہ ہم اپنا زیادہ تجزیہ شیئر نہیں کریں گے آپ سے, ہم ماہر جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں. تو ون اینڈ اونلی حکیم شاہ نذیر صاحب, اوئے ہوئے ہوئے ماشاءاللہ آج تو سیال لباس میں آپ, مطلب جمعے کا دن آپ یادگار بنا رہے ہیں. نہیں, بہت شکریہ آپ کا. تو شاہ صاحب بتائیں یہ کہ یہ جو معدے کی تیزابیت, سینے کے جلن, یہ معاملات ہیں کیا؟ یہ ہم میں سے ہر کوئی وٹنس کر رہا ہوتا ہے, ذرا سا تیز اسپائسی چیز کھا لی, 4 کپ دن میں اگر 6 کپ چائے کے بمشکل پی لوں تو اس سے بھی سینے میں جلن فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں تو ایک چاکلیٹ کھا لوں تو اس سے شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ دیکھیں ہم نے ایک چیز ہے کہ ہمارے یہاں پہ جس طرح میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ آج کل واک نہیں ہے,
दूसरी चीज, हम बाहर की चीजें बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं। बाहर की चीजों में कुछ खास किस्म की केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं, जिससे इंसान वहीं जाके दोबारा खाता है। ठीक है, तलब हो रही होती है दिल में। और दूसरा ये है कि मैदे में तेजाबियत बननी शुरू होती है। और दूसरा, बाहर की चीजें खाने की वजह से एक बैक्टीरिया होता है जो कि एच पेलोरी कहलाता है, ठीक है, वो फाल हो जाता है। वो फाल हो जाता है, वो तो बड़ा खतरनाक, बहुत खतरनाक हो जाता है। वो डर खौफ भी पैदा करता है, घबराहट, बेचैनी, धड़कन तेज, बेचैनी रहती है, मुंह का जायका भी खराब रहता है, कभी मुंह में छाले हो जाते हैं। और अक्सर लोगों को खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, अफारा हो जाता है, खट्टी मीठी डिकारें शुरू हो जाती हैं। और बाज़ ऐसे होते हैं जो कि बाइपोलर के पेशेंट्स होते हैं, एंजाइटी के पेशेंट्स होते हैं, तो उनको भी गैसेस बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी होती है उसके बाद? हाँ, होती है, बिल्कुल एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, गैसेस दिल की तरफ जाती हैं, घबराहट शुरू हो जाती है। तो इंसान कहता है कि शायद मुझे कुछ हो गया। हालांकि बिल्कुल अपने मौलिज का मशवरा ज़रूर जारी रखना चाहिए और कोशिश कीजिए कि बाहर की चीज़ें कम अज़ कम इस्तेमाल करें। और जो भी चीज़ खाएं अच्छी तरह चबा के खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। और खाना खाने के बाद एक 40 कदम चल लिया तो शाह साहब जो अभी हम कितने 40 कदम बस, हाँ, चल लिया करें खाना खाने के बाद, ताकि ये डाइजेस्ट हो। अरे सर, हजम हो वो तो एतदाल के साथ ना जी। तो यहाँ पर ये जो 3-3 प्लेटें फोड़ने के बाद तो फिर तो 400 कदम भी कम हो गए। आपने देखा होगा अक्सर लोग खाना खाते हैं उनको नींद आ जाती है। वो भी एक प्रॉब्लम है, वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैदे का निजाम डिस्टर्ब रहता है उनका, फूड कोमा होता है जी हाँ, गले में बलगम होता है। एक और चीज़ देखें, साइंस ये कहती है कि खाना आपने खा लिया, उसके बाद आप थोड़ा सा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को मौका दें ताकि वो सुकून में आए, फिर उसके बाद आप चलना फिरने शुरू करें। आप कह रहे हैं कि खाना प्लेट रखी और फिर नहीं, ऐसा नहीं। खाना खा के थोड़ा सा आराम से फिर उसके बाद एक 40 कदम चल लिया करें आप, क्योंकि आप खाना खा के फौरी बेड पे जाएंगे ना सोने, चाय का आधा कप पी के अभी चलने शुरू होने वाला था, शोर रुक जाता भी नहीं। खाना खाने के बाद ये है कि कम से कम 2 घंटे बाद बेड पे जाना चाहिए सोने के लिए, वरना पेट निकलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। और जिन लोगों को भी गैस, तेजाबियत, बदहजमी, पेट का फूलना, अफारा हो जाना, गैसेस बहुत बनना, मुंह में तेजाबियत आ जाना, यहाँ मैदे से लेके यहाँ मुंह तक जलन महसूस होती हो, तो एक सफूफ बनाना मैं सिखा रहा हूँ। अरे बताएं शाह साहब, आपकी ये जो तरकीबें होती हैं ना यार, जी, ये कमाल होती है। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, अज्जा होते हैं ना कि बड़ी खुशी होती है। भाई ये दिखाएं, इससे पहले कि उलट जाए, कौन सा कैमरा है? हाँ जी, ये ले आए जी, ये हल्का सा इधर, ये अनारदाना तो समझ आ रहा है ना? जी, ये कसूरी मेथी है? नहीं, कसूरी मेथी नहीं है। फिर क्या है ये है सना मक्की है। सना मक्की, ठीक है। अनारदाना, इससे ज्यादा करूंगा तो सारा रुड़ जाएगा। सूखे लीमू और पुदीना देसी। सूखे लीमू, हाँ, पुदीना देसी पुदीना सूखा हुआ है। पक्की बात है, ये अभी का ही है ना? हाँ, सकता हूँ। हाँ, सूखा हुआ होता है ये। अच्छा ठीक है, ये बड़ा अच्छा होता है। इसमें सफेद और एक वो देसी, हाँ, एक पहाड़ी होता है, जो सफेद होता है, वो भी बड़ी अच्छा, वो भी बहुत अच्छा होता है, उसकी चाय बना के पीते होते हैं। इसमें जरा सा नमक डाल दो, सारा पाउडर बना के। और ये देखिए, ये सना मक्की साबुत है, ये इसका पाउडर है। आपने वजन लेना है 50 ग्राम, ठीक है। ये अनारदाना है, ये इसका पाउडर है। हाय हाय हाय, ये आपने लिया, ठीक है, हो गया 50 ग्राम। ये पिसेगा कैसे इतना बारीक अनारदाना? ये मशीन में पिसता है, मतलब ग्राइंडर में, जो ग्राइंडर में पिसता है। अच्छा ठीक है। ये सूखे लीमू है, ये इसका पाउडर है। सूखे लीमू, ये तमाम चीजें पंसारी की दुकान से, हाँ, छिलके समेत ही पीस लें। खुद घर में नहीं सुखा सकते इनको? लीमू सुखा सकते हैं, साए में सुखाएं, साए में सुखाएं। अच्छा ठीक है। और ये देसी पुदीना है, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया। आपने, हाँ, वजह यह है कि मैं नमक इसलिए नहीं लेकर आया कि बास बीपी के पेशेंट्स होते हैं जिनको हम नहीं, आपको ये भी डर होगा कि इशफाक सत्ती खा जाएगा सारा अगर हल्का सा नमक। नहीं इशफाक साहब, आप जितना भी खाएंगे आप पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आपको ब्लड प्रेशर नहीं रहता। खाना किस टाइम है ये बता दें। और ये हर खाने के बाद आधी चाय वाली चम्मच। अच्छा, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बेहतर है, और ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बेहतर है, पेट के अफारे के लिए भी बहुत क्या है। कहाँ जाना है हमने? हमजा शहबाज अभी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो पहले आपको दिखाते हैं। तीर तो नहीं मारा 4 सालों में, अवाम को मार दिया है इन्होंने जीते जी। आज इमरान न्याजी से कोई पूछने वाला है कि 50 लाख घर तो नहीं बने, लेकिन सीमेंट के जो रेट हैं पाकिस्तान की 74 साल तारीख में सीमेंट के वो रेट नहीं हुए। यानी गरीब आदमी घर का ख्वाब क्या बनाएगा, उसके सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। आज अच्छे से अच्छा जो साहिब हैसियत इंसान है वो भी 100 मरतबा सोचेगा कि मैं घर बनाऊं। तो ये कौन सा नया पाकिस्तान है, ये कौन सी रियासत मदीना है जिसमें एक जाली वज़ीर आज़म जो है वो भरे जलसों में लोगों को
पुकारता है, ललकारता है। इस तरह तो जो मैं नाम नहीं लूँगा, गली की नुक्कड़ पर जो खड़े होते हैं ना, मुझे अपनी ताऊ देकर, उनका नाम आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इस तरह धमकियां देते हैं वो। किसी को अपनी बंदूक के निशाने पर रखा है, किसी को मैं देख लूँगा। कल भी कह रहा था कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। इमरान नज़ीर, सुन लो मेरी बात, तुम्हारी फजूल बातें पाकिस्तानी कौम ने 4 साल सुन ली हैं। पाकिस्तानी कौम जो भूखो अफलास में मजबूर है, मजदूर बेरोजगार है, तुम कहते हो ना कि तुम किसी को छोड़ोगे नहीं, अब पाकिस्तानी अवाम तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। तुमसे एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा और इसकी गीदड़ भपकियों में, इसकी धमकियों में कोई ना आए। और मैं आज ख़ास तौर पर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को कहना चाहता हूँ, मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि वोट डालना एक आईनी हक है हर मेंबर का, चाहे वो सेक्रेटरी इंटीरियर है, चाहे वो FIA है, चाहे वो इस्लामाबाद पुलिस है, पंजाब पुलिस है, कोई भी ऐसी सिविल इदारा है। ये आदमी अपना एतमाद खो चुका है, ऐवान का एतमाद खो चुका है। अगर किसी सिक्योरिटी सिविल इदारे ने इसके कहने पर कोई भी गैर कानूनी हरबा आजमाया तो हम खुदा के फजल करम से मुतहदा अपोजिशन अदम एतमाद की कामयाबी के बाद उसको कटहरे में लेके आएंगे और उसको मिसाल बनाएंगे। इसलिए ये आदमी जो बदहवासी में अनाप शनाप कहता है जलसों में, कभी यूरोपियन यूनियन को ललकारता है, कभी किसी को एब्सोल्युटली नॉट कहता है, कभी किसी को कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। इसके दिमाग के अपर चैम्बर में खाना खाली है। इसलिए इसकी बातों को एक कान से सुने, एक कान से निकाल दें, क्योंकि ये अदम एतमाद की वोटिंग से पहले अपने मेंबरान का एतमाद खो चुका है, पाकिस्तानी अवाम का एतमाद खो चुका है। इत्तेहादी बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम की रज़ा देखेंगे। 22 करोड़ अवाम चारों सूबों में क्या देखना चाहती है, इत्तेहादी भी इस बात को बारीक बीनी से महसूस करते हैं। उन्होंने भी इलेक्शन में अवाम के पास जाना है। उन्होंने भी देखा कि 4 सालों में इमरान नियाज़ी ने तमाशबीनी की, अवाम से ढोंग रचाया। ये एक ढोंगी है, ये झूठा है। और कल आपने देखा कि ये जो अपना बाहर के लोग, जिसके आम पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं ओवरसीज़, कल उन्होंने भी अदम एतमाद किया। उन्होंने कहा कि हमारे फंड कहाँ पे हैं, हमने जो फंड दिए थे उसका हिसाब मांगा उन्होंने। कल अपना जो है ये कियानी साहब से टेलीविज़न स्क्रीन्स दिखा रही थी, तोशा खाना में अवाम हिसाब मांगती है। अभी 7 साल इल्तवा का शिकार हुए, इलेक्शन कमीशन में तुम्हारे फॉरेन फंडिंग के केस, अभी तक तुम्हें अपना जो है वो इल्तवा से तुम्हारी जी राज़ी नहीं हुआ। कल भी तुम्हारी एप्लीकेशन जो है वो मुस्तरद हुई कि इल्तवा करें, सीगा राज में रखे। राज में रखने वाली क्या बात है? क्यों 7 साल से तुम इसके पीछे हो कि तुम्हारा झूठ, तुम्हारी करप्शन, तुम्हारा ढोंग, तुम्हारी तमाशबीनी अवाम के सामने ना आए? इंशाअल्लाह मैंने आज से कई साल पहले कहा था कि जब इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग का कच्चा छट्टा खोलेगा तो इमरान नियाज़ी अवाम के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। और इंशाअल्लाह मेरे रब को मंजूर हुआ तो ऐसा ही होगा कि उसने
अच्छा जी, तो हमजा शहबाज साहब गुफ्तगू कर रहे थे और हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब यहाँ पर विराजमान हैं। तो हकीम साहब ये नुस्खा तो आपने बता दिया, दोबारा से एक वो रीकैप बहुत होता है सारे ना, वो नुस्खे थोड़ा सा इन्होंने कर दें। हमें इस सारे टाइम में भी बताए हैं, उसमें हम बताएंगे, आप वो शेयर बिल्कुल, करें। ये जिन लोगों को भी मैदे में तेजाबियत रहती हो, जलन रहती हो, गैसेस बनती हो, अफारा हो जाता हो, कॉन्स्टिपेशन हो जाती हो, और या आपको गैसेस की वजह से घबराहट फील होती हो और मुंह का जायका जो है वो ख़राब हो जाता हो, तो उसको बेहतर करने के लिए और खट्टी मीठी डिकारों को ख़त्म करने के लिए 4 चीज़ें हमने टोटल ऐड की हैं इसमें। सना मक्की, अनारदाना, लीमू खुश्क, पुदीना देसी, ये तीनों चारों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के हमने ऐसे पाउडर बनाया, और इसकी हर खाने के बाद आधी चाय वाली चम्मच सादा पानी से आप देखिएगा पहले ही दिन फर्क पड़ेगा। एक चीज समझा दें जी जी कि भाई ये फक्की खाते हुए ये चूंकि बारीक सफा हुआ, सांस न लेना सांस ले लिया ना तो फिर और भी इलाज हो जाए। नहीं, आप इसे खा के ऊपर सादा पानी पी लें, और इसको बिल्कुल बारीक करना है आपने मशीन से, कपड़े में छान लें, तिनके ना हो, वो फिर मैदे में चुभते होते हैं। अच्छा, अब ठीक है? ये दूसरा एच पेलोरी का जो बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से घबराहट खौफ भी महसूस होता है, और मैदे में प्रॉब्लम होती है, इंसान समझता है मेरे दिल में प्रॉब्लम हो रही है, और इसमें यह है कि बाज़ औक़ात स्टूल में ब्लड आने के भी चांसेस होते हैं, और घबराहट, बेचैनी, धड़कन, दर्द रहता है मैदे में हर वक्त, कुछ भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, मैदे में दर्द शुरू हो जाता है। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है इसबगुल छिलका, ठीक है, ये एक खाने वाला चम्मच, और ये एक लकड़ी आती है रेवंत खताई, ये उसका पाउडर है, रेवंत खताई। जी हाँ, आपने ये लेना है सिर्फ 1 चुटकी, ऐसे 2 चम्मच और 1 चुटकी, 1 चम्मच इसबगोल छिलका और 1 चुटकी रेवंत खताई का पाउडर, ठीक है। इसे मिलाकर आपने थोड़ी देर के लिए रखना ताकि ये फूल जाए, फिर इसे शेक करके चम्मच से आपने ये पी लेना सुबह नाश्ते से पहले, अगर भूल जाए नाश्ते के 1 घंटे बाद, अगर रात खाने से पहले खा लें, रात खाने के 1 घंटे बाद ले लें, यानी दिन में 2 बार लेना है ये। और वो आप देखिएगा रिजल्ट आपको पहले 15 मिनट में मिलेगा। ये एच पैलोरी के लिए। अच्छा, और वो जो मेरे वालिद साहब से मुतालिक आप बता रहे थे, ये बिल्कुल वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनको अल्सर की प्रॉब्लम है, क्योंकि एच पैलोरी का जो बैक्टीरिया है वो मैदे में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में अल्सर का सबब बनता है। अच्छा, जो कि घबराहट, बेचैनी भी पैदा करता है। लेकिन अल्सर के बगैर भी सीने की जलन, ये अल्सर के बगैर भी तेजाबियत को दूर करती है। जो जलन रहती है, दर्द रहता है मैदे में, यूं पसलियों से नीचे तक में पेन सा महसूस होता है, ये उसको भी बेहतर करती है, मुंह के छालों को भी खत्म करती है, और मुंह की कड़वाहट को भी। जबरदस्त चैलेंज, बड़े ही मुफीद मशवरे और ऐसे ऐसे नुस्खे उन्होंने बता दिए हैं, जाके फौरन से अमल करें। हमने एक चीज मामला बताना चाहूँगा कि अक्सर लोगों का पेट बिल्कुल गेंद की तरह निकला हुआ था, वजन बढ़ रहा है, आप अपने वजन को कम करेंगे, पेट कम नहीं होता, ये पेट कम करने के लिए चाय पिए, वजन कम करें। तो उसमें आपने लेना मिर्गीज़ बूटी, मकोदाना, ये दोनों 1-1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, मिर्गीज़ बूटी, मकोदाना 1-1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, 1.25 कप पानी में डालें, जोश दे दें, कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, किसी भी वक्त बनाकर पिएं। अब हम फौरन से ही बनवाने लगे हैं चाय, और अभी ब्रेक में पीने वाले हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर रहते हैं। स्टे विद अस। अच्छा जी, तो अब ज़रा हम बात कर लेते हैं खाबे से मुतालिक। ठीक है, खाबे मुख्तलिफ इलाकों के, मुख्तलिफ जगहों के, मुख्तलिफ मकामात के मशहूर होते हैं। कभी हम चिन्योट के खाबों का तस्करा करते हैं, कभी मुल्क के मुख्तलिफ मज़ीद इलाकों का। अच्छा, कराची की अगर हम बात करें तो कराची के अंदर मखसूस इलाकों का तस्करा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कराची मिनी पाकिस्तान है, 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी का शहर है, और यहाँ पे वेराइटी ऑफ फूड आपको नज़र आता है। और हमारी कोशिश होती है बाखबर सवेरा में कि फूड स्पॉट्स जो हैं वो एक्सप्लोर करें और आपको दिखाएं कि आप वहाँ जाके टेस्ट करें नित नए खाने। तो जनाब, कराची का एक इलाका है नॉर्थ कराची, जहाँ पर यखनी पुलाव बहुत मज़े का बन रहा है, और दूर दराज से लोग आते हैं और पैक करवा कर घर वालों के लिए भी लेके जाते हैं। रुबीना अलवी रिपोर्ट करेंगे। इस वक्त हम मौजूद है कराची के एक इलाके में जहां का बीफ यखनी पुलाव बहुत मशहूर है, और इसकी मशहूरी की जो गूंज है वो दूर तक सुनाई दे रही है। इसी की वजह से और इसी गूंज को सुनकर आज हम भी इस स्टॉल पर आए हैं और यहाँ का पुलाव खाएंगे। कुकिंग इसलिए की कि लोग अपनी आंखों से देखें। आप पूरा दिन हमारे पास खड़े होकर देखें, हमारे चावल, गोश्त, तेल, गरम मसाले, हरे मसाले आंखों से लोग देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ के तकरीबन हमारे पास 7-8 हज़ार अफराद डेली खाना खाने के आते हैं। अगर इसको कराची का किंग ऑफ पुलाव कहा जाए तो कोई दो राय नहीं है। 5 किलो से हमने शुरू किया था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन 200 किलो के लगभग हमारा पुलाव यहाँ सेल आउट होता है। कराची वाले घूमना फिरना, हंसना बोलना और ख़ास तौर पर खाना पीना कभी नहीं छोड़ सकते। काफ़ी अच्छा और मेयारी पुलाव है, और बहुत सस्ता और अच्छा साफ शफाफ तरीके से बनाया जाता है। पुलाव में सबसे बेहतरीन और उम्दा पुलाव यहीं का। टेस्ट भी अच्छा लगता है। मंगोपीर से आते हैं हम लोग यहाँ।
टावर साहब बड़ा नाम सुना इनका, तो अभी यहाँ माल लेने आए थे तो सोचा खाते हुए जाएं। हर गली हर मोहल्ला रहता है हल्ला गुल्ला, ऊपर पड़ी तली प्याज कर देती है पुलाव को बहुत खास, पुलाव को जो कर देती है जबरदस्त, इसमें पड़ी हरी मिर्च। अब आप हमको कहने वाले हैं थैंक यू वेरी मच, क्योंकि हमने इस स्पेशल पुलाव के बारे में आपको बता दिया है सच सच। कराची के लोग रात गए सोना तो भूल सकते हैं, मगर घूमना फिरना और खाना पीना नहीं भूल सकते। यही वजह है कि ये मज़ेदार यखनी बीफ पुलाव सुबह 10 बजे ही तैयार कर लिया जाता है। कैमरामैन ज़िशान मरगूब के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज़ कराची। थैंक यू वेरी मच रुबीना अलवी को हम कहेंगे जनाब, इन्होंने वाकई बड़ा ही मज़े का जो यखनी पुलाव है वो मुतारिफ़ करवा दी है। हम जाएंगे, अब कोशिश करेंगे पूरी टीम जाएं और जाकर खा कर आएँ। बिल्कुल जी। और अभी एक खबर जो है वो आप तक पहुँचाएँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वफाकी वज़ीर असद उमर की इलेक्शन कमीशन ऑर्डर के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है और वज़ीर आज़म के वकील ने नए तरमीमी ऑर्डिनेंस का हवाला उसमें दिया। तो मज़ीद तफसीलात जहांगीर असलम बताएंगे। जी जहांगीर असलम से जानते हैं। जहांगीर बताइएगा क्या हुआ समाअत में? जी बिल्कुल, पब्लिक ऑफिस होल्डर का इंतखाबी मुहिम चलाने पर इलेक्शन कमीशन के नोटिस का मामला है। समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस आमिर फारूक ने की। अदालत ने जो है इलेक्शन कमीशन और काबीना डिवीजन को जो नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इमरान खान के वकील से सवाल किया कि किस किस को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किए हैं, जिस पर इमरान खान के वकील ने अदालत को बताया कि इमरान खान, असद उमर और दीगर को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस जारी कर दिए गए हैं और 14 तारीख की पेशी का दिन था, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बताया कि आप जो है इलेक्शन कमीशन के नोटिस के दिन जिस दिन बुलाया था आप पेश की नहीं हुए, जिस पर इमरान खान के वकील ने बताया कि वो इलीगल ऑर्डर था इसीलिए पेश नहीं हुए, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि एक जो है आईनी इदारा है उसका काबिल एहतराम है, एक डिकरम है और इसी तरह जो है काबीना डिवीजन और इमरान खान की एक इज्जत एहतराम है, लेकिन जो आईनी इदारा है उन्होंने बुलाया था, आप जाके ये बातें जो अदालत को हाई कोर्ट को बताए जा रहे हैं वो बातें वो आप इलेक्शन कमीशन को भी बता सकते थे और फिर आप हाई कोर्ट या दीगर जो रेमेडी आपको हासिल है वहाँ पे भी आप जा सकते थे। जिस पर उन्होंने कहा कि हम आइंदा समाज पे जब पेश होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन कमीशन की जानिब से हमें जुर्माना किया जाएगा और उस जुर्माना अदा करने के लिए तैयार हैं। जिस पर अदालत ने कहा, हिदायत की इमरान खान के वकील को अगर वो खुद पेश नहीं होते तो वकालत के जरिए जो है वो इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग में पेश हों और जिन जिन को नोटिस किए हैं वो पैरवी कर लें। और ये आप आईनी सवाल कर रहे हैं जिसका जो है हम इसका अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस जारी कर लेते हैं और आइंदा समाज जो है 28 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी। बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर असलम, आपने तफसीलात हमें दी। अच्छा जी, अब ज़रा हम बात करते हैं कि हमने अक्सर देखा होगा कि जहाँ पर ट्विन्स को देखा जाता है या जुड़वा बहन भाइयों को देखा जाता है तो उसमें पहचान करना मुश्किल हो जाता है कि कौन कौन है कौन कौन है। वो ये हो जाता है ना हाल, मैं हूँ मेरे साथ भी मैं हूँ। हाँ जी। तो ऐसा कुछ हाल हुआ। फैसलाबाद में भी 2 जुड़वा भाई हैं जो कि पेशे के लिहाज से वकील हैं और हम ये देखते हैं कि बचपन में एक भाई शरारत करे या जुड़वा में से तो दूसरे को सज़ा मिल जाती है। अक्सर व बेशतर ऐसे वाक़यात होते हैं। तो जनाब ऐसे ही 2 भाई हैं जिनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं और अच्छा, उनके नाम भी सेम है तकरीबन सेम, आफ्ताब शहबाज और आफ्ताब शहजाद। अच्छा, मुझे मेरे दिमाग में जो है ना कंफ्यूज हो रहा है ये नाम लेते हुए। अच्छा, इन्होंने अपने जो चैम्बर है लॉ चैम्बर उसका नाम भी जोड़ा लॉ चैम्बर रखा हुआ है, जोड़ा लॉ चैम्बर, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इनसे आपको मिलवाते हैं, इनसे बात करते हैं और इनकी स्टोरी जानते हैं कि कैसे कैसे वाक़यात और इन्होंने किस तरह लोगों को धोखा भी दिया हुआ है। आपको वेलकम कहेंगे। ये कहिएगा सबसे पहले तो अपने नाम तारुफ करवा दे कि आप में से कौन आफ्ताब शहबाज और आफ्ताब शहजाद है, और फिर दूसरा ये बताइएगा कि एक जैसा नाम भी है, कितनी बार लोगों को धोखा दे चुके हैं? मेरा नाम आफ्ताब शहजाद है और जो हम नाम लिखते हैं मलक आफ्ताब शहजाद जोड़ा, और भाई का नाम जो है मेरा नाम है आफ्ताब शहबाज। मैं भी जो तखल्लुस है जोड़ा ट्विन्स होने के नाते वो हम तखल्लुस अपने साथ नाम के साथ वो लगाते हैं, मलक आफ्ताब शहबाज जोड़ा एडवोकेट। अच्छा, तो ये शक्ल जैसी नाम तकरीबन एक जैसा, तो लोग तो अक्सर धोखे में पड़ जाते होंगे कि भाई इनमें से कौन शहबाज है कौन शहजाद, किसके पास केस है। आमतौर पर जो है रोज़ ही अदालत के अहलकारान हो गए, जज साहबान हो गए, हमारे दोस्त हो गए, पुलिस हो गए, यानी कि आम तौर पर रोज़ की बुनियाद पर जो है सैकड़ों लोग धोखा खाते हैं।
इसके जो हैं जानने वाले वो मुझे मिल जाते हैं, मेरे जानने वाले इसको मिल जाते हैं, फिर हम जो है अपने वो मुतारफ़ करवाते हैं, नहीं यार ये तुम्हारे जानने वाला है या मेरे भाई का जानने वाला है, इस तरह से हम जो उनको मुतारफ़ करवा देते हैं। फिर अच्छा, जब भी किसी ट्विन्स होते हैं तो उनकी कोई ना कोई बड़ी दिलचस्प स्टोरीज़ होती हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं। आपके साथ भी ऐसे दिलचस्प वाक़यात पेश आ चुके होंगे, चाहेंगे कि आप शेयर करें? वाक़यात तो बचपन से लेकर अभी तक पेश आ ही रहे हैं और जब तक ज़िंदगी है तब तक पेश आना ही आना है, अल्लाह पाक का फ़ज़ल है, क्योंकि ट्विन्स हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। वैसे चंद एक वाक़यात हैं हमारी ज़िंदगी में, जैसे कि एक कॉलेज के अंदर एक दौड़ थी, 800 मीटर दौड़ थी, जिसमें 4 चक्कर लगाने थे, 2 चक्कर इसने लगाए भाई ने और 2 चक्कर मैंने लगाए और बाकायदा सेकंड पोजीशन है, हमें इसनाद मिली, कप मिला, ट्रॉफ़ी मिली हमें। वो हमारी ज़िंदगी का वैसे यादगार लम्हात है। सेकंड ईयर की बात है ये, डिग्री कॉलेज समुद्री की बात है ये। मज़ा आया। अभी तक जो है दोस्त अहबाब हैं वो धोखा खा जाते हैं, तो मज़ा आ रहा है, अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। कहीं पहली पोजीशन जिसने ली हो वो भी जुड़वा ना हो, चेक कर लेते। अच्छा, दूसरा ये है कि ये अपने कभी ऐसा हुआ है कि घर वालों को या फिर उनको धोखा हो, क्योंकि घर वाले तो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं एक एक अलामत पे, एक एक चीज़ पे, या रिश्तेदारों को? ये तो पहचानने वाले पे डिपेंड करता है ना कि वो कितना जो है माइंड अप्रोच का मालिक है, कितना जोर लगाता है पहचानने के लिए हमको। अदरवाइज़ जो है जो हमारे ज़्यादा करीब रहते हैं वो कहते हैं कि अब दोनों भाइयों को काफ़ी जो है हम पहचान लेते हैं, इतनी ज़्यादा ममासलत नहीं है। लेकिन जो कभी कभी जो हमसे मिलता है या रोज़ की बुनियाद पर नहीं मिलता, वो तकरीबन रोज़ ही भूल जाता है। अब जो है प्रैक्टिस करते हुए काफ़ी अरसा हो गया, तकरीबन जो है 90% लोग जो हैं वो हमें जानते नहीं हैं, पहचानते ही नहीं है कि कैसे जो है इनको पहचाना है, कौन शहजाद है, कौन शहबाज है, वो रोज़ ही भूलते हैं। अच्छा, शहबाज और शहजाद, जिस तरह से आपके नाम भी सेम है, जिसामत भी एक जैसी लग रही है, ये कहिएगा कोई शनाख्ती अलामत है ऐसी जिसे पहचाना जा सके, हाँ जी ये शहजाद है और ये शहबाज है? फ़ायदा उठाने को ऐसे नहीं होता कि फ़ायदा उठाने के लिए किसी का नुकसान किया जाए, वो फ़ायदा नहीं, जस्ट जो है एंजॉय करने के लिए, या जो है ऐसा फ़ायदा जिससे किसी का नुकसान ना हो। जैसे क्लास में जो ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है, हाज़िरियाँ लगवा दें या मेरी हाज़िरियाँ इसने लगवा दें, हम जो है कहीं चले गए, आ गए दोस्तों के साथ बैठ के, यानी कि हम जस्ट इस तरह के फ़ायदे उठाते रहे हैं जिस तरह किसी को नुकसान ना हो। वो रोज़ की बुनियाद पर हम जो है कर लेते हैं, दोस्तों से गपशप भी लगा लेते हैं, लेकिन लोग भूल भी जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी कभी हुआ है, जैसे रेस में तो ये कर लिया, ये बताएं अदालत में कभी ऐसा किया है कि एक भाई की तैयारी ज़्यादा तो कहा कि भाई आज केस लड़ने आप चले जाओ, मेरी तैयारी नहीं है? कभी अदालती अमले या इस तरीके से मुल्ज़मान को ऐसा हुआ है, कोई परेशानी हुई है आपकी वजह से? 100 महीने टाइम धोखा हुआ वो, बल्कि जैसा बान भी जो अक्सर वक्त भूल जाते हैं, हमारे जो हैं दोस्त अहबाब भी भूलते रहते हैं, और मुलज़मान जिसके हम वकील होते हैं वो भी भूल जाते हैं, बल्कि इसके अक्सर जानने वाले मुझे मिल जाते हैं। ये जोड़ा साहब आपको फ़ीस दी थी जनाब, हमारा काम करें, मैं उससे पहली बार मिल रहा होता हूँ, मैं कहा भाई एक मिनट सब्र कर यार, मुझे वो मेरा भाई है। उसको फिर यकीन नहीं आता, फिर मुतअद्दिद मरतबा कहने के बावजूद फिर कहना भाई अच्छा यार ऐसे करते हैं, तुम नंबर मिला के तुम चेक कर लो, या तुम्हारे वाला वकील है या मैं दूसरा। वेरी इंटरेस्टिंग। आफ्ताब शहबाज, आफ्ताब शहजाद हमारे साथ ट्विन ब्रदर्स मौजूद थे, अपने दिलचस्प वाक़यात हमसे शेयर कर रहे थे। एक ही फील्ड, हाँ, एक ही तरीक़ेकार और एक जैसे कपड़े, जोड़ा आपका है, अल्लाह ताला उसको इसी तरीके से बरकरार रखे। आमीन आमीन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अच्छा जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और शब बारात तमाम मुसलमानों को, दुनिया भर में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज शब बारात जो है वो अक़ीदत व एहतराम से सेलिब्रेट की जाएगी और बड़ी अफादियत है इस रात की। बारात का मतलब है आज़ादी, निजात, तो ये वो रात है जिसके अंदर आप अपनी दुआओं के ज़रिए अपने आप को जहन्नुम की आग से निजात दिला सकते हैं। इसके साथ नामा अमाल भी कहा जाता है, पूरे साल का एक हिसाब किताब भी लिखा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, और फजीलतों वाली रातों में से ये एक रात है। इस दिन मुसलमान इबादत करते हैं, नफल रोज़े रखते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, और अगले दिन यानी 15 शुबान को रोज़ा भी रखा जाता है इस सिलसिले में। तो जनाब, शुबान का रमज़ान के बाद जो सबसे फजीलत वाला जो महीना है वो शबान है, जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कई बार बयान कर चुके हैं। और इसमें ये कहा जाता है कि रमज़ान के बाद जो है शबान में रोज़े रखे जाते हैं, 15 रोज़े रखे जाते हैं। सुन्नत ये है एक, और बिल्कुल किसी की ज़िंदगी कितनी है, कब उसकी इस रात को ये फैसला भी हो जाता है और कि कब तक उसने ज़िंदा रहना। बहरहाल और दुआएं मकबूल सारी होती जी हैं इस रात। दुआएं बड़ी कबूल होती हैं। अच्छा, जाते जाते एक और चीज़ हम आपको बताते चलें कि मोहम्मद वसीम, उसकी एक फ़ाइट है, हमारे बड़े अच्छे स्टार हैं, और सनी एडवर्ड्स और मोहम्मद वसीम की फ़ाइट होने जा रही है, तो लुक फॉरवर्ड टू इट।
बिल्कुल ऐसे ही। अभी हम इजाज़त लेते हैं आपसे। खुश रहिए और खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।